السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ اچھے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے لاسٹ پارٹ پلکوں پر ٹھہرے خواب کا، اور یہ لکھا ہے حبیبہ عمیر صاحبہ نے۔ اس سے پہلے ہم نے پارٹ اور کیے ہیں جس میں ہم نے پڑھا کہ بدیا بہت ہی بیچاری سی لڑکی ہوتی ہے۔ اس کے والدین کی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے، ماما مامی کے ساتھ رہتی ہے۔ مامی بہت ہی ظالم ہوتی ہیں، ماما بہت خیال کرنے والے ہوتے ہیں، مگر پھر بھی مجھے ایسا لگتا ہے وہ خیال نہیں رکھتے میرے حساب سے۔ اور ان کے دو بچے ہوتے ہیں، علی اور ولی۔ علی اسے ناپسند کرتا ہے پہلے، پھر دھیمے دھیمے اسے پسند کرنے لگتا ہے۔ اور ولی پہلے اسے بہنوں کی طرح اس کا خیال رکھتا تھا، پھر وہ محبت کے چکروں میں پڑ جاتا ہے۔ اور ان کی جو خالہ ہوتی ہیں ذکیہ بیگم، بہت ہی زیادہ لالچی ہوتی ہیں۔ ان کا ایک بیٹا رضوان بھی ہوتا ہے جس کی بری نظر ہوتی ہے ودیعہ پر۔ اور ودیعہ کے دادا اس کے لیے اپنی ایک زمین چھوڑ کے جاتے ہیں جس کی مالیت کروڑوں میں ہوتی ہے۔ خالہ تو لالچی ہیں، وہ اپنے بیٹے کی شادی اس سے کروانا چاہتی ہیں، اور بیٹا بھی جو پورا لوفر ہے تو شادی کے لیے اس کے ماموں منع کر دیتے ہیں۔ تو یہ لوگ پلان کرتے ہیں کہ اس کو کڈنیپ کروا لیتے ہیں، 2 دن کے بعد اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ جب آتی ہے تو اس پہ کوئی یقین نہیں کرتا ہے، مگر ہمارے ہیرو علی کو سچائی کا پتہ چل جاتا ہے اور وہ اس سے نکاح کر لیتے ہیں۔ اور نائلہ جو کہ علی سے شادی کرنے کی بہت ہی اس کو خواہش تھی، اس کی خواہشیں ادھوری رہ جاتی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں آگے یہ لوگ کیا پلان کرتے ہیں۔ تو چلیں ہم شروع کرتے ہیں، اور شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اب نکاح کے بعد تو اس کی شکل بھی نہیں دیکھیں گے، بس زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی، وہ خود ہی جان چھڑانے کی کرے گی۔ اور وہ بھائی صاحب ذکیہ بیگم نے یاد دلایا، ارے رہنے دو انہیں اماں، بس تم دیکھنا اب وہ خود جائے گی تو وہ بھی کیا کر پائیں گے، بس ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ وہ تسلی دیتے ہوئے بولی، چلو دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ ذکیہ بیگم سر پکڑ کر بولی، نکاح کیسے ہوا، کب مولوی صاحب آئے، کتنے لوگ تھے، اسے خبر نہیں ہوئی، بس ماں کا چلانا یاد تھا، اور اس کے بعد کے وسوسے کہ اب کیا ہوگا، علی کے ساتھ یہ بندھن اب کیا رنگ لائے گا۔ پہلے ہی اس گھر میں جینا دشوار تھا، اب تو سانس لینا بھی محال ہو جائے گا۔ اسے امی ابو شدت سے یاد آ رہے تھے، اگر ہوتے تو یقیناً وہ آج اس حال میں ہرگز نہ ہوتی۔ اس نے عام لڑکیوں کی طرح شادی کے حوالے سے کوئی حسین خواب تو نہیں سجائے تھے، مگر اس طرح ہنگامی نکاح کا بھی اسے تصور نہیں تھا۔ رخصتی بھی کیا ہوگی، اسے کون سا کوئی دوسرے گھر جانا تھا، اس گھر میں تو رہنا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی، اس نے پاس پڑے پھولوں کے ہار کے اوپر سے پتیاں نوچنا شروع کر دی۔ وہ مسلسل سوچے جا رہی تھی، اب اس کے علاوہ اس کے پاس کرنے کو رہ ہی کیا گیا تھا۔ بیٹا ودیعہ کا خیال رکھنا، وہ بن ماں باپ کی بچی ہے، اور اپنی ماں کا رویہ تو تم اچھی طرح جانتے ہو، ہم نے اسے کبھی سچی خوشیاں نہیں دی ہیں، مگر اب تم اسے ہر وہ خوشی دینا جس کا وہ حق رکھتی ہے۔ آپ فکر نہ کریں ابو، میں پوری کوشش کروں گا کہ اسے خوش رکھ پاؤں، علی نے وقار صاحب کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ ویسے ابو، عجیب ہنگامے میں سارا کام ہوا ہے، میرا نکاح تو عجیب ہی ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، ہاں کیونکہ تم خود عجیب ہو۔ وہ بھی مسکرائے۔ دونوں باہر صحن میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ مجھے کبھی نہیں لگا کہ تمہاری اور ودیعہ کی بنی ہے، تم اس نے بیزار اور وہ تم سے خفا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ کیسے تم نے اس سے نکاح کا فیصلہ کیا۔ وقار صاحب مسکراتے ہوئے بولے، ابو وہ میرا بچپنا تھا، اب مجھے عقل آ گئی ہے نا، آخر کو پولیس والا بن گیا ہوں۔ وہ اکڑا، جی ایس پی صاحب مان گئے کہ آپ کو عقل آ گئی ہے، اللہ تمہیں ڈھیروں خوشیاں دے۔ انہوں نے بڑھ کر اس کی پیشانی چوم لی۔ چلو شکر ہے کہ سب ہو گیا۔ وہ بولے، ابو امی کیا کریں گی؟ وہ فکر مند تھے۔ بیٹا شوق تو اسے لگا ہے، اور جہاں تک میرا ذاتی خیال ہے اب اس کا رویہ ودیعہ کے ساتھ بدترین ہوگا۔ تمہیں ہی ودیعہ کا خیال رکھنا ہے اب، اور اس کی ڈھال بننا ہے۔ وہ تشویش سے بولے، میں سمجھتا ہوں ابو۔ وہ بھی فکر مند تھا۔ چلو یار اندر چلے، وقار صاحب اٹھتے ہوئے بولے۔ علی اپنے کمرے میں جانے لگا کہ ایک دم اس کا دل چاہا کہ وہ ودیعہ کو ایک نظر دیکھ لے۔ وہ چلتا ہوا اس کے کمرے کے باہر تک آیا تھا۔ اس نے مسکراتے لبوں سے دستک دی، دوسری دستک اندر آنے کی اجازت ملی۔ وہ داخل ہوا۔ کمرے میں بھینی بھینی سی گلابوں کی خوشبو تھی جو غالباً ہار کی پتیوں سے آ رہی تھی۔ وہ سر جھکائے ہرے اور پیلے کاٹن کے سادہ سے جوڑے میں بیٹھی پتیوں کو بسل رہی تھی۔ علی کی موجودگی کا احساس پاتے ہی اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ اسے ہرگز امید نہیں تھی کہ وہ آ جائیں گے۔ بھائی آپ، اس نے بے ساختہ کہا۔ علی کا جاندار قہقہا بلند ہوا۔ کیا کہا تم نے ابھی؟ میں نے کہا کہ آپ یہاں کیسے؟ وہ شرمندہ سی بولی۔
آپ سے پہلے کیا بولا تھا؟ وہ ہنس رہا تھا۔ کیا بولا تھا؟ وہ پریشان ہو گئی۔ بھائی بولا تھا آپ نے۔ وہ چند قدم بڑھا۔ اوہ، اس نے اپنی غلطی کا احساس پاتے ہی سر جھکا لیا۔ تم خوش ہو ودیا؟ علی اب سنجیدہ ہوا۔ خوشی کیا ہوتی ہے؟ میں شاید اس سے واقف نہیں ہوں۔ وہ طنزیہ ہنسی۔ علی کو کچھ ہوا۔ تم یہ مت سمجھنا کہ کسی نے زبردستی کی ہے میرے ساتھ، وہ گمبھیر لہجے میں بولا۔ ودیا نے سر اٹھایا۔ اس نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ سفید شلوار سوٹ میں وہ دلکش لگ رہا تھا۔ یہ میرا ذاتی فیصلہ ہے، وہ ہاتھ پیچھے باندھتے ہوئے بولا۔ کون سا فیصلہ؟ آواز میں سادگی تھی۔ تم سے نکاح کا۔ وہ بھی صاف گو تھا۔ کس چیز کا بدلہ لینا رہتا ہے؟ وہ مسکرائی۔ بدلہ نہیں رہتا، بلکہ اب مداوع کا وقت آ گیا ہے۔ وہ سنجیدہ تھا۔ مداوع؟ وہ حیرت سے بولی۔ آپ کو یاد بھی ہے کہ آپ کو کس چیز کا مداوع کرنا ہے؟ وہ سر جھکا گئی۔ یاد تو نہیں، مگر کوشش پوری کروں گا کہ میں تمہیں وہ تمام خوشیاں دے پاؤں جو تمہارا حق ہے اور اب میرا فرض ہے۔ اب تم اکیلی نہیں ہو، اب میں ہوں تمہارا۔ وہ آخری جملے کو زور سے بولا اور پھر پلٹ گیا۔ اس نے سر جھٹکا۔ آئے بڑے مداوع کرنے والے، اب انہی کی وجہ سے اور زخم لگیں گے، ان کا حساب کون دے گا؟ اگلے دن علی اور وقار صاحب کے جاتے ہی مامی آئیں اور انہوں نے اسے بے بھاؤ کی سنائی، بلکہ غصے میں تھپڑ بھی جڑ دیا۔ وہ چپ رہی، نہ بولی، نہ احتجاج کیا اور نہ ہی آنسو بہائے، کیونکہ وہ یہ کام بہت پہلے چھوڑ چکی تھی۔ زندگی معمول پر آ گئی تھی، نکاح کو ہفتہ ہونے کو آیا تھا۔ نائلہ کی آمد ایسے ہی جاری تھی، بلکہ اب وہ زیادہ آنے لگی تھی۔ علی کا سامنا ودیا سے گن کر 2-3 بار ہوا تھا۔ اب ودیا کو اس کی آنکھوں میں بیزاری نظر نہیں آتی تھی۔ اب ودیا کو دیکھ کر عجیب سی چمک پیدا ہو جاتی تھی۔ ودیا کترا کر نکل جاتی اور اسے بات کرنے کا موقع ہی نہ دیتی۔ مامی کا چیخنا چلانا معمول تھا۔ اب اس میں شمائلہ اپنا حصہ ڈالنا اپنا حق سمجھتی تھی اور وہ بس خاموش رہتی تھی۔ علی ان دنوں کافی مصروف تھا۔ شہر کے حالات کو بہتر بنائے اور دہشت گردوں سے اسے بچانے کے لیے سیکیورٹی کے انتظامات کا ذمہ اس کے پاس تھا۔ اسے دوسرے عہدیداروں کے ساتھ مل کر شہر بھر کا سروے کرنا ہوتا تھا اور جہاں جہاں پر سیکیورٹی کی ضرورت ہوتی اسے وہ دیکھنا ہوتا تھا، اس لیے اس کے پاس ٹائم کی کمی تھی۔ وقار صاحب عشاء کی نماز پڑھنے گئے تھے اور ولی بھی اپنے کمرے میں تھا۔ آج مامی کا غصہ دو چند ہوا تھا۔ آج کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا تھا، جس کا سارا ملبہ ودیا پر گرنے والا تھا۔ وہ اب بھی نہ جانے کون کون سے گناہ اسے یاد دلا رہی تھی۔ نہ جانے کیا سمجھ رکھا ہے تو نے اپنے آپ کو منحوس لڑکی، سبز قدم نہ ہوا تو تیرے اپنے ماں باپ کو کھا گئی، پھر نانی کو کھا گئی اور پھر اپنے دادا کو نگل لیا۔ اس بد کردار نے بے حیا کیا ڈورے ڈالے ہیں میرے بھولے بیٹے پہ کہ تیرے چکر میں پھنس گیا ہے۔ وہ بول رہی تھی۔ بولتی کیوں نہیں تو؟ کیوں بت بنی کھڑی ہے؟ ہاں بول۔ وہ اس کے بازو کو جھٹکا دے کر بولی۔ ہاں تو اور کیا، شکل سے دیکھو کتنی بھولی لگتی ہے، میسنی نہ ہو تو۔ شمائلہ بھی مزے لے کر بولی۔ آج علی معمول سے جلدی آ گیا تھا، ورنہ وہ تقریباً مہینے سے رات کے 12-1 بجے ہی لوٹتا تھا۔ اس کے قدم پیچھے ہی تھم گئے۔ امی اور بھابھی بری طرح سے لتاڑ رہی تھیں۔ اس نے ودیا کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں سنا تھا۔ ہڈ حرام کہیں کی، سالن دیکھا ہے تو نے کتنا زہر کیا ہوا ہے؟ اب وہ اصل مقصد کی طرف آئیں، آنکھیں لاوا اگل رہی تھیں۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کچا چبا جائیں اسے۔ دماغ کہاں ہوتا ہے تیرا منحوس لڑکی؟ وہ اسے دھکا دے کر بولی۔ علی کا دماغ گھوم گیا اور زیادہ غصہ اسے ودیا کی خاموشی پر آ رہا تھا۔ وہ تیزی سے بڑھا۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی اس نے جلدی سے تھام لیا۔ شمائلہ تو ایک دم پیچھے کو ہوئی، مگر رقیہ بیگم کا اشتعال کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ وہ چنگاڑا۔ پوچھو اس سے کہ ہوا کیا ہے؟ ہمیں مارنا چاہتی ہے، اتنا زیادہ نمک ڈال کر، پتہ بھی ہے کہ میں بی پی کی مریضہ ہوں، مگر یہ منحوس ہمیں جان سے مارنا چاہتی ہے۔ رقیہ بیگم نے بات کا بتنگڑ بنا لیا۔ امی، نمک زیادہ ہو گیا اور آپ نے اسے اتنی باتیں سنا دی؟ میں نے سب سن لیا ہے، وہ غصہ دبا کر بولا۔ رقیہ بیگم تھوڑی کسمسائی اور شمائلہ تو ادھر ادھر دیکھنے لگی جیسے انجان ہو۔ علی نے ایک نظر امی اور دوسری بھابھی پر ڈالی، پھر ودیا کی طرف مڑا۔ اور تم کچھ بول نہیں سکتی؟ چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے کیا تم نے؟ کی قسم کھائی ہے سب سہنے کی؟ وہ اسے بازوؤں سے جھنجھوڑ کر بولا۔ ودیا نے خود سے اسے دیکھا جس کا غصے کے مارے برا حال تھا، اور علی کے غصے سے تو خدا ہی بچائے، یہ سب جانتے تھے۔ تم چلو میرے ساتھ۔ وہ اسے کھینچتا ہوا اوپر لے گیا۔ رقیہ بیگم نے سیڑھیوں کی طرف دیکھا، پھر ایک جاندار مسکراہٹ لبوں پر رینگ گئی۔ اچھا ہے، علی بھی اسے دو لگائے تو عقل ٹھکانے پر آئے گی، وہ کہہ کر کمرے میں آرام سے چلی گئی، جبکہ شمائلہ تازہ ترین اطلاع اپنے میکے میں دینے کے لیے فون پر لپکی۔ وہ اسے کمرے میں لایا اور بیڈ کی طرف دھکا دے دیا۔ وہ دھڑام سے گری بیڈ پر اور اس کے پیچھے سے ایک زوردار آواز سے دروازہ بند کیا۔ تم کیا نیچے چپ کر کے سن رہی تھی؟ ہاں؟ اب وہ اس کی طرف بڑھا۔ وہ ڈر کے مارے تھر تھر کانپنے لگی تھی
और اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ خوف سے اسے دیکھ رہی تھی۔ امی اور بھابھی تمہیں فضول میں سنائی جا رہی تھی اور تم گونگی بنی سن رہی تھی؟ ہاں، وہ دہاڑا۔ وہ ڈر کر پیچھے ہوئی۔ پہلے تو وہ جان بوجھ کر خاموش تھی، مگر اب ڈر کے مارے اس سے بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے، وہ اسے شانوں سے پکڑ کر بولا۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ اسے لگا کہ اسی ہڈیوں کا سرما بن گیا ہو۔ جواب دو، اسے کھڑے کر کے بولا۔ وہ وہ اسے ڈر کے مارے بولا ہی نہیں جا رہا تھا، الفاظ جیسے حلق میں اٹک ہی گئے ہوں۔ کیا وہ چلایا۔ جواب نہ پا کر اس نے ایک جھٹکے سے چھوڑ دیا اور پھر ایک دم پلٹ گیا اور اپنی انگلیاں بالوں میں پھنسا لی۔ اب وہ اس کی طرف پشت کیے کھڑا تھا۔ ودیا اب بھی ہولے ہولے کانپ رہی تھی، ماتھے پر ننھی ننھی بوندیں تھی اور ہاتھ بھی گیلے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ چٹیا سے بال نکل کر جہاں بجا بکھر گئے تھے۔ کچھ بالوں نے اس کا چہرہ چھپانے کی ناکام کوشش بھی کی تھی۔ ودیا ودیا میں کیا کروں تمہارا؟ وہ ایک دم پلٹا۔ اگر آج یہ ہوا ہے تو یقیناً پہلے بھی کئی بار ہو چکا ہوگا۔ وہ اب آرام سے بول رہا تھا، اور تم چپ چاپ سنتی رہی ہوگی۔ اس نے اس کے لرزتے وجود کو دیکھا، پھر ایک دم اسے بھینچ کر سینے سے لگا لیا۔ تم کب تک چپ رہو گی ودیا؟ اپنے لیے بولنا سیکھو۔ اس نے مضبوطی سے اپنی باہوں میں تاما ہوا تھا اور اب اس کا لہجہ یکسر بدل چکا تھا۔ وہ کچھ لمحوں کے لیے حواس باختہ ہو گئی۔ آلی کی اچانک حرکت پر اسے کچھ سمجھ نہیں آیا، مگر جب حواس بحال ہوئے اور احساس ہوا کہ وہ آلی کے سینے سے لگی ہے تو اس کا دل عجیب سی لہر پر دھڑکنے لگا اور لرزتا جسم مضبوط سائباں پا کر ٹھہرنے لگا۔ ودیا کے کان کی لمحیں شرم کے مارے سرخ ہو گئیں۔ اس نے آہستگی سے خود کو آلی کے مضبوط حصار سے الگ کیا۔ آلی کی حرکت جوش جذبے کی وقتی کیفیت تھی۔ اسے جب احساس ہوا تو اس نے بھی جلدی سے اسے علیحدہ کیا۔ پھر وہ پلٹ گیا۔ دونوں چند لمحے اپنے جذبات پر قابو پاتے رہے۔ دیکھو ودیا، اب تم خاموش مت رہو بلکہ اپنا دفاع میں بولو۔ اگر چپ رہو گی تو دنیا کی سب سے گنہگار انسان لوگ تمہیں ہی سمجھیں گے، اس لیے بولو، اپنے حق کے لیے آواز اٹھاؤ۔ وہ بغیر پلٹے ہی بولا۔ ودیا اپنے ہاتھ مسل رہی تھی۔ میں جاؤں؟ وہ بولی۔ ہوں۔ ودیا خاموشی سے نکل کر روم میں چلی گئی۔ دل اب بھی بے طرح دھڑک رہا تھا۔ کمرے میں بستر پر لیٹ کر اس کی کیفیت عجیب سی تھی۔ آلی کے بارے میں اس کے خیالات کبھی بھی مثبت نہیں رہتے، مگر نکاح کے بعد شاید رشتے کا تقاضا تھا کہ وہ بھی آلی کے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ محسوس کرنے لگی تھی۔ بستر پر لیٹے تو لبوں پر ہلکا سا تبسم رقص کر رہا تھا۔ آلی نے پہلی بار اس سے کہا تھا کہ وہ اپنے بارے میں سوچے، اور یہ بات اسے بہت بھلی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ کیا پہن کر آئی ہو تم؟ شمائلہ نے نائلہ کا سر سے پیر تک جائزہ لے کر ناگواری سے کہا۔ کیا ٹھیک تو ہے میرا سوٹ؟ کاٹن کے ڈھیلے سے جوڑے کو ایک نظر دیکھ کر وہ ناسمجھی سے بولی۔ ڈھنگ سے تیار ہوا کرو، تمہیں یہ بھی سمجھانا پڑے گا نائلہ؟ وہ قریب آ کر بولی۔ اچھا لیکچر نہ دو، بتاؤ آلی ہے کیا؟ وہ منہ بسور کر بولی۔ ہاں ہے، گھر میں ہی ہے۔ اچھے وقت پر آئی ہو، وہ ویسے بھی گھر میں کم ہی ٹکتا ہے، شمائلہ نے تفصیل بتائی۔ اچھا بتاؤ، اماں ابو ٹھیک ہے؟ وہ جوس کا گلاس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی۔ ہاں، انہیں کیا ہونا ہے بھلا؟ وہ بدتمیزی سے بولی۔ رضوان کا سناؤ، کیا حال ہے؟ شمائلہ نے بھی جوس کا سپ لیا۔ اس کا کیا ہونا ہے، وہی اپنی پرانی روش پہ، وہ ناگواری سے بولی۔ ہائے میرا بھائی، کیا کیا نہیں سوچا تھا اس کے لیے، مگر منحوس اینڈ ٹائم پر دغا دے گئی۔ شمائلہ نے غائبانہ ودیا کو کوسا۔ ہاں، اس کے بارے میں سناؤ، کیا حال ہے اس کے؟ نائلہ دل پر پتھر رکھ کر پوچھا۔ حال کیا ہونے ہیں اس کے؟ میں نے اور خالہ نے تو جینا ہی آرام کر دیا ہے، مگر مجال ہے جو آگے سے کچھ بول جائے، چپ کر کے سر جھکا کر سنتی رہتی ہے۔ نہ جانے کون سی ڈھیٹ ہڈی کی بنی ہے کہ اتنا صبر اور برداشت ہے۔ لگتا ہے خدا نے ہم سب کے حصے کا صبر بھی اسے ہی دے دیا ہے۔ ہاں اپا، ہے تو بڑی صبر والی۔ چل چھوڑ اس کے صبر کو، تو یہ بتا کہ آلی کا رویہ اس کے ساتھ پہلے جیسا ہی ہے نا؟ مجھے کیا پتا، رات کو دیر سے آتا ہے وہ، اور میں نے اس کے ساتھ بھی آلی کو دیکھا نہیں، مگر میرا خیال ہے پہلے جیسا ہوگا۔ مگر تم اپنا کام جلدی کر لو نائلہ، نکاح رشتہ ہی ایسا ہے کہ انسان کا دل کتنا ہی بنجر کیوں نہ ہو، نکاح کے بول اس پر رمجم کی طرح گرتے ہیں اور حق احساس اس میں بیج کا کام کرتا ہے۔ محبت کی کوپل لگنے میں دیر نہیں لگتی، سمجھی؟ دیکھنا آپا میں کیسے آلی کو اپنا دیوانہ بناتی ہوں۔ بس تم بے فکر ہو جاؤ۔ نائلہ نے فرضی کالر جھاڑے۔ مجھے پتا ہے، شمائلہ بھی مسکرائی۔ ودیا میری بات سنو۔ وہ گزر رہی تھی کہ آلی کی نظر پڑی تو بلا لیا۔ جی، وہ جھجکتے ہوئے داخل ہوئی۔ اس رات کے بعد وہ اس کے سامنے جھجکنے لگی تھی، شرم کی سرخی چہرے پر دوڑ جاتی تھی آلی کا سامنا کرتے ہوئے، اور یہ سرخی آلی کو بے حد پسند تھی۔ میری ریڈ والی شرٹ نہیں مل رہی ہے، تم نے رکھی تھی نا، کہاں ہے؟ وہ الماری میں منہ گھسا کر بولا۔ وہ میں نے کل دھوئی تھی، میں لاتی ہوں۔ وہ واپس پلٹی، دروازے پر نوک ہوئی تو اسے لگا ودیا ہوگی۔ وہ وہیں سے بولا، آ جاؤ یار، اب اندر، تم بار بار نوک تو نہ کیا کرو۔ اس کا لہجہ شوق تھا۔ مجھے پتا ہے کہ میرا تم پر اتنا حق ہے کہ نوک کرنے کی ضرورت نہیں، مگر ادب آداب بھی کوئی چیز ہے۔
नाइला बेतकल्लुफी से दाखिल हुई। आली का मुंह ऐसा हुआ जैसे मीठे बादामों में कोई बहुत ही कड़वा बादाम मुंह में आ गया हो। ये यहाँ क्या करने आ गई है? वो उकता गया। कैसे आई हो? लहजे की शोखी एकदम संजीदगी में बदल गई। रिजवान के साथ आई थी, वो छोड़कर चला गया है। वो बेड पर बेतरतीबी से बैठते हुए बोली, मेरा मतलब है कि मेरे कमरे में आज किस खुशी में तशरीफ लाई हैं नाइला बेगम। वो चिढ़ गया। एक उसके बेफजूल बात बढ़ाने में, दूसरा उसके बैठने के अंदाज पर। वो बेढंगे तरीके से बैठी थी जिससे आली डिस्टर्ब हो रहा था। मुझे लगा कि तुम मुझे यकीनन मिस कर रहे होगे, तो सोचा अपने दीदार का शर्फ बख्शूं आली साहब। वो शौक होकर अपने शोल्डर कट बालों में उंगलियां चलाने लगी। बड़ी मेहरबानी, अब आप जाएं, क्योंकि मुझे तैयार होना है और कहीं जाना है। वो उसको दरवाजे की तरफ इशारा करके बोला, कहाँ जाना है आपको आली साहब? लहजा शीरीनी में डूबा हुआ था। जहन्नम में, आपको चलना है? वो चिढ़कर बोला। उसे उसका बोलना इंतहाई ज़हर लग रहा था। चलें, हम तो वहाँ भी आपके साथ चलने को कब से तैयार हैं। वो एकदम से खड़ी होकर उसके करीब आई। आली 2 कदम उछलकर पीछे हटा। जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मेरा दिमाग घूम जाए। अब के लहजा हर किस्म के जज़्बात से आ रही था। उसने दरवाजे की तरफ दोबारा इशारा किया और ना जाऊँ तो? वो करीब हुई। तो मैं उठाकर बाहर फेंक दूँगा। वो सफ़ाकी से बोला, तो उठाओ ना, वो बाजू फैलाकर बोली। आली का दिमाग उसके बेबाकपन पर घूम गया। ओह स्टॉप दिस एंड गेट लॉस्ट, वो दहाड़ा। अचानक वदिया शर्ट प्रेस करके आ गई। उसने नॉक करने के साथ ही दरवाजा खोल दिया। अंदर वो दोनों आमने सामने खड़े थे। नाइला ने अपने दोनों बाजू आली के सामने फैलाए हुए थे। उसे देखते ही बाजू गिरा दिए। आली ने दिल में शुक्र अदा किया कि नाइला से जान छूटी। कहाँ रह गई थी तुम? एक शर्ट लाने में इतनी देर लगती है? वो उल्टा उस पर बरस पड़ा। उसके हाथ से शर्ट खींची और वॉशरूम में घुस गया, जबकि नाइला एक मकरूम मुस्कुराहट से उसकी बेवकूफ़ी पे हंसकर चली गई। ये क्या हो रहा है? वदिया बड़बड़ाई। ये पहली बार नहीं था कि नायला इस तरह आली के कमरे में हो। वह कई बार नायला को आली के कमरे में उसके करीब ही खड़े देख चुकी थी, और एक बार तो वो करीब बहुत ज्यादा ही थी। और निकाह के बाद भी ये सिलसिला रुका नहीं था, बल्कि नायला का आना और भी बढ़ गया था। मगर अब वो नायला को गौर से देखने लगी थी। खुले बालों में शोक रंग के कपड़े, गहरे रंगों की लिपस्टिक और फिटिंग ज़दा कपड़ों में वो अदाएं लुटाती अक्सर ही आती थी, और ज़्यादातर उस वक्त आमद लाजमी होती जब आली घर पर हो। अब वो इतनी भी बच्ची नहीं थी कि सब समझ ना सके। आली का किरदार मशकूक हो रहा था वदिया की नज़र में। हाँ, पता था यही होगा। उल्टा ही सोचना है ना हमेशा। खैर, आज एक बार फिर मामी ने छोटी-सी बात पे उसे अच्छी खासी सुनाई थी। उसका मूड खराब था, रात का खाना भी उसने नहीं खाया था, और दोपहर में भी वो कपड़े धोने के चक्कर में खाना गुल कर गई थी। अब उसे शदीद भूख महसूस हो रही थी। वो खामोशी से कमरे से बाहर निकली और सीधा किचन में आई। उसने खाना गरम किया और पानी का गिलास लेने लगी थी कि वो डर गई। "वदिया, खाना मुझे भी दो, भूख लगी है," आली ने पीछे से कहा। उसकी दबी चीख निकल गई। "क्या हुआ है?" आली घबरा गया। "डर गई थी आपकी आवाज़ पर," वो हल्की आवाज़ में बोली। मुबादा मामी ही ना आ जाएं। उनका कमरा किचन के साथ था और नींद की भी वो कच्ची थी। ओह अच्छा, सॉरी। वो बोला, प्लीज खाना दे दो। वो जेरे लब मुस्कुराया। जी, उसने कहकर मुंह मोड़ लिया। आली पानी की बोतल निकाल कर और गिलास लेकर टेबल पर चला गया। वदिया ने खाना गर्म किया और लेकर टेबल पर आ गई। वो आली से एक कुर्सी के फासले पर बैठी। आली ने नोट किया मगर बोला कुछ नहीं। वदिया ने घड़ी देखी, रात का 1 बज रहा था। आप इतनी देर से खाना खा रहे हैं? वो हैरान हुई। उसके गीले बाल बता रहे थे कि वो नहा कर आया था। हाँ, मैं थोड़ी देर पहले ही आया हूँ, इसलिए। वो प्लेट में चावल डालकर बोला। वदिया खामोशी से खाना खाने लगी। तुम इतनी देर से क्यों खा रही हो? वो कनखियों से उसे देखते हुए बोला। वो मुझे भूख नहीं थी, इसलिए नहीं खाया था। वो सर झुकाकर मसरूफ अंदाज से बोली। अभी दोनों के दरमियान बातचीत ना होने के बराबर ही थी। आली ज़रूरतन उसे बुलाता था और वो भी जी हाँ, अच्छा जैसे अल्फाज में बात तकमील कर लेती थी। हाँ, अलबत्ता आली का एहसास उसके लिए बदल गया था। अब उसकी नज़रों में बेज़ारी नहीं होती थी उसके लिए, बल्कि अब एक इत्मीनान का एहसास झलकता था। तुम पढ़ाई दोबारा शुरू कर लो वदिया, आली पानी पीते हुए बोला। मुझे आगे पढ़कर क्या करना है? उसने सोचा मगर बोली नहीं। मेरी तरफ से तुम्हें मुकम्मल आज़ादी है, वो उठते हुए बोला, मगर दूसरी तरफ हुनूस खामोशी थी। उसने एक उचटती सी निगाह वदिया पर डाली और फिर खामोशी से चला गया। वदिया ने सर उठाकर उसकी पुश्त को देखा और दोबारा प्लेट की तरफ मुतवज्जो हो गई। वो दूध लेकर कमरे में आई तो वो थकन के बायस गहरी नींद सो चुका था। काले बाल माथे पर थे। पुरसुकून नींद सोते हुए उसके चेहरों पर बच्चों की सी मासूमियत थी, जिसने वदिया की तवज्जो हासिल कर ली थी। उसने हाथ बढ़ाकर उसके माथे से बाल हटाने चाहे, मगर मामी की शाम को सुनाई गई बातें एकदम कानों में गूंजने लगी। बेहया, बेशर्म, जादूगरनी, बदकिरदार। उसने तेजी से हाथ खींचा और कमरे से निकल गई। जब से पता चला था कि शुमाइला उम्मीद से है, मामी की खुशी देखने से ताल्लुक रखती थी। उन्होंने वदिया को सख्ती से मना कर दिया था कि वो शुमाइला के
آس پاس بھی نہ پٹکے اور اسے سارے کام کا ذمہ بھی دے دیا تھا۔ پہلے بھی وہی کرتی تھی مگر دیکھتا کون تھا۔ یہ خاص ہدایت بھی اسے معلوم تھا کہ خالہ کی طرف سے آئی ہوگی کہ منحوس کے سبز قدم ہیں، اسے میری بیٹی کے آس پاس بھی نہ آنے دینا۔ ودیعہ اور علی کے نکاح کو 3 مہینے ہو گئے تھے۔ دونوں کی زندگی میں کوئی خاص فرق نہیں آیا تھا۔ علی زیادہ ہی مصروف ہو گیا تھا اور ودیعہ بھی گھر کے کاموں میں الجھی رہتی تھی۔ جب بھی ودیعہ کے دل میں کوئی علی کے نام کی کومپل کھلتی، مامی کی باتوں اور کبھی کبھی نائلہ اور علی کے رویے سے وہ مرجھا جاتی اور وہ یہ سوچتی کہ علی وقار بدلنے والا انسان نہیں ہے، اس کے دل میں کم سے کم ودیعہ کے لیے نیک جذبات نہیں ہو سکتے۔ علی کی ٹرانسفر کے آرڈرز آئے تھے، اسے لاہور سے فیصل آباد ٹرانسفر کیا جا رہا تھا اور وہاں کا چارج اسے 2 دنوں میں سنبھالنا تھا۔ اس نے شام کی چائے پر سب کو بتایا۔ ابو کو تو کوئی اعتراض نہیں تھا، البتہ امی کو کوئی خوشی نہیں ہوئی تھی۔ تمہارا جانا ضروری ہے کیا؟ انہوں نے فکر مندی سے پوچھا۔ امی کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ جانتی تو ہیں کہ میری جاب ہی ایسی ہے۔ علی نے انہیں شانوں سے تھاما۔ تم کچھ اور نہیں کر سکتے؟ مجھے ڈر لگتا ہے۔ ملک کے حالات ہی ایسے ہیں اور اوپر سے تمہاری نوکری بھی خطرے والی ہے۔ لاکھوں دشمن بن جاتے ہیں ایماندار پولیس والوں کے۔ وہ فکر مند تھی، آخر وہ ماں تھی، اور ویسے بھی جب سے تمہارا اس سبز قدم والی لڑکی سے نکاح ہوا ہے نا، تب سے زیادہ ہی فکر کھائے جاتی ہے تمہاری۔ انہوں نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے کٹوروں میں لیا۔ امی، زندگی اور موت تو خدا کے ہاتھ میں ہے، بھلا کوئی انسان اسے کیسے چھین سکتا ہے؟ آپ خدا پر بھروسہ رکھیں، اور اگر میری جان وطن کے کام آ جائے تو اس سے بڑھ کر فخر اور کیا ہوگا؟ وہ تفاخر سے بولا، ایک سچے سپاہی کے یہی جذبات ہوتے ہیں۔ شاباش بیٹا، مجھے تم پر فخر ہے۔ وقار صاحب خوش ہو کر بولے، جبکہ موت کا نام سن کر اس کے دل میں عجیب سے وسوسے آنے لگے۔ اگر خدا نخواستہ علی کو بھی کچھ ہوا تو اس کی ذمہ دار میں ہی ہوں گی۔ جانے سے پہلے علی اس سے خاص طور پر ملنے آیا تھا۔ اپنا خیال رکھنا ودیعہ، اور اگر کوئی پریشانی ہو تو مجھے فون ضرور کرنا، اوکے؟ وہ مسکرا کر بولا۔ جی آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا۔ وہ پہلی بار اسے دیکھ کر مسکرائی۔ علی اس کے منہ سے ایسے کلمات سن کر نہال ہو گیا۔ پہلے کا تو پتہ نہیں، مگر ہاں اب ضرور رکھوں گا، آخر تم نے کہا ہے نا؟ وہ مسکرا کر بولا اور خدا حافظ کہہ کر نکل گیا۔ مامی نے اسے ڈھیروں دعائیں دیں اور خدا کے حوالے کیا۔ فیصل آباد کے پوش علاقے میں اسے کوئی کوٹھی الاٹ ہوئی تھی۔ گھر کافی کشادہ اور ہوادار تھا، باہر بہت خوبصورت لان تھا۔ گھر مکمل ویل فرنشڈ تھا۔ وہ اپنے ساتھ سامان کے طور پر بس ایک بیگ لایا تھا جس میں اس کا ضروری سامان تھا۔ سلام صاحب، ایک ادھیڑ عمر ملازم نے کہا اور جوس کا گلاس بڑھایا۔ وعلیکم السلام بابا، وہ مسکرایا اور گلاس تھام لیا۔ میرے سے پہلے جو صاحب تھے، آپ ان کے پاس بھی تھے؟ جی صاحب، میں اور میری گھر والی ادھر ہی تھے، وہ باادب بولا۔ ہوں، اور کون کون ہے؟ وہ تفصیلی نگاہ وسیع لاؤنج میں ڈال کر بولا۔ بس صاحب، ہم دونوں ہی ہوتے ہیں، اور مالی آتا ہے ایک دفعہ دن میں پودوں کی دیکھ بھال کو، اور چوکیدار ہوتا ہے۔ وہ تفصیل بتاتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے، ویسے آپ کا نام کیا ہے؟ وہ گلاس واپس دیتے ہوئے بولا۔ رمضان نام ہے جی، مگر مجھے رمزو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آپ جائیں رمزو بابا، وہ کہہ کر اٹھا اور بیڈ روم کی طرف فریش ہونے کے لیے بڑھا۔ اسے آئے ہوئے 2 دن ہوئے تھے، دن کا تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا، البتہ گھر آ کر ویران گھر کاٹنے کو دوڑتا تھا۔ گھر میں صرف 2 ملازم ہوتے تھے اور کوئی نہ تھا، نہ کوئی انتظار کرنے والا اور نہ کوئی مسکرا کر استقبال کرنے والا۔ اسے گھر والے بہت یاد آ رہے تھے۔ علی نے گھڑی دیکھی، 10 بج رہے تھے۔ اس نے موبائل اٹھایا اور گھر کا نمبر ملایا۔ تیسری بل پر ریسیو کیا گیا۔ السلام علیکم ابو جان، وہ جوش سے بولا۔ دوسری طرف وقار صاحب بھی اس کی آواز سن کر تر و تازہ ہو گئے۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسے ہو تم؟ ٹھیک ہوں ابو، آپ سنائیں، گھر میں سب کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے، سب ٹھیک ہے۔ تم بتاؤ کیا ہو رہا ہے؟ بور ہو رہا ہوں۔ ہونا کیا ہے، خالی گھر اور میں اکیلا۔ آواز بیزار ہو گئی۔ ہاں یہ تو ہے، انسان اپنی روزی روٹی کے لیے یہ سب تو برداشت کرتا ہی ہے، انہوں نے رسان سے کہا۔ امی کہاں ہیں؟ انہیں بلائیں۔ وہ ان کی آواز سننے کو بے تاب تھا۔ صرف 2 دن ہی وہ ہوئے تھے اور اسے لگا کہ نہ جانے کتنا عرصہ ہو گیا ہے اسے گھر والوں کی آواز سنے۔ ہاں بیٹا، یہ لو آ گئی ہے تمہاری امی۔ انہوں نے ریسیور رقیہ بیگم کی طرف بڑھایا۔ یہ لو، علی کا فون ہے۔ ہیلو علی بیٹا، کیسے ہو تم؟ اب فرصت ملی ہے، 2 دنوں سے کوئی اطلاع نہیں تھی، اتنے مصروف ہو گئے ہو تم کیا؟ وہ گیلا کر رہی تھی۔ جی امی ٹھیک ہوں، وہ دراصل یہاں سارا نظام ابتر ہوا ہے، وہی مصروف تھا۔ کل رات میری واپسی ہی 1 بجے ہوئی تھی اور سارا دن تو سر اٹھانے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ یہاں حالات سازگار ہیں امی، وہ مصروفیت بتا رہا تھا، اور دوسری طرف رقیہ بیگم کا دل ہول رہا تھا۔ خطرے کی تو کوئی بات نہیں ہے نا بیٹا؟ وہ پریشان ہوئی۔ ارے نہیں، ایسی بھی بات نہیں، بس ذرا نظام خراب ہے یہاں کا، اور تو کچھ نہیں۔ وہ انہیں ٹال گیا، ورنہ حالات اس علاقے کے کافی سنگین تھے۔ اچھا تم کہتے ہو تو مان لیتی ہوں، انہوں نے جیسے خود کو تسلی دی۔ کھانا وغیرہ کا کیا انتظام ہے بیٹا؟ ارے امی، یہاں ملازم ہے، گھر بھی بہت بڑا ہے اور آرام دہ ہے، آپ فکر نہ کریں۔ اور سنائیں بھابھی اور بھائی کیسے ہیں؟ وہ دانستہ ودیعہ کے بارے میں نہیں پوچھ رہا تھا،
हाँ, यहाँ सब ठीक है, बस तुम्हारी कमी महसूस होती है। तुम कभी इस तरह कहीं गए नहीं हो ना, बस इसलिए वो उदास हो गई। वो आली से काफ़ी करीब थीं, लिहाज़ा उसकी कमी ज़ाहिरी तौर पर उन्हें सबसे ज़्यादा महसूस हो रही थी। मुझे भी आप सबकी बहुत याद आती है अम्मी, बस आप दुआ करें अम्मी कि अल्लाह मेरे मुल्क और हम सब का बेहतरीन करे। वो अज़्म से बोला, हाँ बेटा बस दुआएं ही तो रह गई हैं, वही करते हैं। अच्छा अम्मी मैं रखता हूँ, सबको सलाम कहिएगा। ओके अल्लाह हाफिज़। हाँ बेटा अल्लाह हाफिज़ और साथ ही फ़ोन रख दिया। आली के जाने से ज़्यादा फ़र्क नहीं आया था, ज़्यादा कमी रुकैया बेगम को महसूस होती थी। वली और वक़ार साहब तो ऑफ़िस चले जाते थे। शुमाइला अपनी ही धुन में मगन रहती थी और वदिया के दिल में उसके लिए ऐसे कोई ख़ास जज़्बे तो थे नहीं जो उसे याद करती और वैसे भी उसके पास इतनी फ़ुर्सत कहाँ थी कि वो सुकून से चंद लम्हे बैठे और याद करे। वधिया बेटा अगर फारिग हो तो एक कप चाय ही पिला दो, सर भारी हो रहा है। वकार साहब अस्र पढ़कर आए तो उसे लॉन में फूलों के साथ मसरूफ देखकर बोले, जी मामू फारिग हूँ लाती हूँ। वो अदब से कहकर अंदर चली गई। अरे आ गए आप। रुकैया बेगम हाथ में तस्बीह लिए बाहर ही आ गई। बाहर के दिन थे, शाम ढले मौसम खुशगवार हो जाता था। फूलों के खूबसूरत रंग और पूरे जौबन पर लहलहाते पौधे बड़ा दिलकश मंजर पेश करते थे और उनकी भीनी भीनी खुशबू मिजाज पर खुशगवार असर छोड़ती थी। हाँ सर जरा भारी लग रहा है, वदिया से कहा है चाय का। वो सर पर हाथ रखकर उसे मसल कर बोले, बुखार तो नहीं? रुकैया बेगम फिक्रमंदी से गोया हुई। अरे नहीं बस ऐसे ही। वो ऐनक दुरुस्त करते हुए बोले, ये आली आया नहीं? इस इतवार खैर तो है ना? वो तस्बीह के दाने गिराते हुए बोली, हाँ बात हुई थी मेरी, कह रहा था मसरूफ था वो काफी, इसलिए नहीं आया, इस इतवार आएगा। मामू चाय। उसने ट्रे उनकी तरफ बढ़ाई, मामी आप भी ले लें। वो दूसरा कप अपने लिए लाई थी मगर मामी को देखकर उनकी तरफ ट्रे बढ़ा दी। जा जाकर अंदर से सर दर्द की गोलियां भी ला। वो कप पकड़ते हुए बोली, जी। वो कहकर अंदर चली गई। अब तो जरा नरम लहजे में बात कर लिया करो, बहू है वो तुम्हारी। वकार साहब खुशामदाना लहजे में बोले, रहने दे बहू है। वो तड़क कर बोली, मैं नहीं मानती बहू बहू, दोबारा मत कहिएगा कि बहू है। ये बस मेरे लिए मुसीबत है और कुछ नहीं। उन्होंने हाथ के वाजे इशारे से उन्हें चुप करवा दिया। भाई हद करती हो। वो गुस्से से बोले और अंदर चले गए। बड़े आए, बहू है। वो फुनकारी और तस्बीह के दाने गिराने लगी। आज उसने फ़ोन किया तो दिल था कि फ़ोन वदिया ही उठाए। जब से आया था उसने आवाज़ ही नहीं सुनी थी उसकी। यहाँ पर आने के बाद उसे एहसास हुआ था कि वदिया के लिए उसके जज़्बात अब आम नहीं रहते, ना हमदर्दी है और ना पछतावा, बल्कि वो वदिया को चाहने लगा है। उसे सबसे ज़्यादा याद वदिया की ही आती थी। अक्सर वो बेख़याली में अपने किसी काम के लिए वदिया को ही पुकारता था। शायद उसकी ये आदत बहुत पुख्ता हो गई थी। अपनी हर ज़रूरत के लिए उसे पुकारने की। हेलो वदिया की मीठी आवाज़ उसकी समातों पर गूंजी। वो चंद लम्हे कुछ बोला नहीं। हेलो। हेलो कौन है? वो मुसलसल बोल रही थी। मैं हूँ। भारी आवाज़ आई। आली भाई? वो बेसाख्ता बोल पड़ी। नहीं सिर्फ आली भाई कुछ ज्यादा ही बुरा लगा, इसलिए शोखी रफ्फू चक्कर हो गई। जी मैं वो फिर शर्मिंदा हुई भाई कहने पर। कैसी हो? मूड बहाल हुआ। ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं उदास हूँ। आवाज़ में वाकई उदासी लग रही थी। तुम्हें मेरी याद आती है वदिया? वो एकदम बोल पड़ा। अचानक ऐसे सवाल पर वो गड़बड़ा गई। जी। वो नासमझी से बोली मगर आली ने अपना ही मतलब अख्ज़ किया। वाकई मेरी याद आती है तुम्हें? वो खुश हो गया। इन्हें क्या हो गया है? ये कैसी बातें कर रहे हैं? वो रिसीवर को घूर कर बोली। किसका फ़ोन है? मामी कमरे से निकली तो उसे फ़ोन पर चिपके देखकर बोली, वो मामी आली का फ़ोन है। आपके वो भाई नहीं। बोली, अच्छा दो मुझे। उन्होंने फ़ोन थामा। हेलो आली कैसे हो तुम? वो बोली, बहुत अच्छा हूँ मम्मी। आज वो वाकई खुश था। आ गए तुम लोग? क्या कहा डॉक्टर ने? वो सोफे पर बैठते हुए शुमाइला और वली से बोली। जी कहा है सब ठीक है, वली ने कहा और फ्रूट्स टेबल पर रख दिए। हूँ अल्लाह का शुक्र है। जाओ शुमाइला तुम आराम करो। उन्होंने शुमाइला को जाने को कहा। मैं भी चेंज कर लूँ। वली भी उठ गया। ये फल कौन लाया है जो यहाँ टेबल पर पड़े हैं? वकार साहब मगरिब की नमाज पढ़कर आए तो टेबल पर फल देखकर बोले, ये वली लाया है। वदिया, ओ किधर है तू? और ये फल लेके जा। और हाँ कल आली की पसंद की चीजें बनाना, वो आ रहा है। उन्होंने हुक्म सादिर किया। कल आ रहा है? वकार साहब खबरें लगाकर बोले, हाँ कह रहा था कि शाम तक आ जाऊंगा। वो भी खबरों की तरफ मुतवज्जो हुई। कल आ रहे हैं वो। वदिया का अजीब सा एहसास हुआ जिसे वो नाम ना दे सकी। एकदम खुशी हुई और फिर वो अजली बेजारी जो आली से मंसूब रही थी। आज सारा दिन वो आली के पसंद की चीजें बनाती रही थी। आली के आने से पहले ही नायला और रिजवान आ गए। चलो जी। इन्हें देखकर वदिया बोली, इनका आना तो जैसे फर्ज ही है। आज नायला की तैयारी देखने से ताल्लुक रखती थी। बालों की ताजा ताजा स्ट्रेकिंग कराई गई थी। मुंह भी कुछ साफ लग रहा था। फुल फिटिंग के कपड़े थे और शोक रंग की लिपस्टिक से उसे समझ नहीं आती थी कि वो सांस कैसे लेती है। गाड़ी का हॉर्न बजा तो उसने किचन की खिड़की से देखा। आली को नई गाड़ी ड्राइवर दी गई थी। वो गाड़ी से निकला और सीधा लाउंज में आ गया।
सबसे वो ऐसे मिला जैसे कितने सालों बाद लौटा हो, हालाँकि उसे गए 15 दिन ही हुए थे। वो जब सबसे मिल चुका तो वदिया उसके लिए जूस लेकर आई। उसे देखकर उसका चेहरा खिल उठा जिसे नायला ने बड़ी बेचैनी से महसूस किया। "कैसी हो तुम वदिया?" वो मुस्कुरा कर बोला। ये पहली दफ़ा था वो सबकी मौजूदगी की परवाह किए बगैर उससे हँसकर बातें कर रहा था। शुमाइला और नायला ने एक-दूसरे को देखा जबकि रुकैया बेगम का पारा भी चढ़ गया। उनका ख़्याल था कि आली ने सिर्फ़ ये बंधन मजबूरी में जोड़ा होगा। जल्द ही ख़त्म हो जाएगा मगर यहाँ तो खीर टेढ़ी लग रही थी। ठीक ठीक हूँ, वो मुख्तसर बोलकर चली गई, जबकि आली उसे जाता देखता रहा। खाने के बाद वो सबके लिए जो गिफ्ट्स लाया था उसने वो निकालिए उसने वो निकाले। अरे! इसकी क्या ज़रूरत थी भला? रुकैया बेगम ने कहा। अम्मी, मैं पहली बार बाहर से आ रहा था तो सोचा कुछ ले चलूँ। वो बैग से चीज़ें निकाल कर बोला। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि कुछ बिन बुलाए मेहमान भी होंगे, वरना उनके लिए भी कुछ ले आता। वो नायला और रिज़वान पर चोट कर गया। नायला, रिज़वान और शुमाइला ने पहलू बदला। अब हम इतने भी गैर नहीं हैं कि यूँ बिन बुलाए हो जाएँ। नायला चिढ़ गई। वदिया भी चाय की ट्रे ले आई। अब आपके लिए किताबें लाया हूँ और वली भाई आपके लिए शर्ट लाया हूँ। वो चीज़ें देते हुए बोला। औरतों की खरीदारी का मुझे अंदाज़ा नहीं था इसलिए सूट ले आया हूँ। वो 3 खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी वाले सूट निकाल कर बोला। एक हल्के गुलाबी रंग का सूट था, एक बादामी रंग का और एक काले रंग का सूट था। काले रंग का वो ख़ास तौर पर वदिया के लिए लाया था क्योंकि ये उसका पसंदीदा रंग था। हाय अल्लाह! कितने खूबसूरत सूट हैं। खाला, नायला ललचाई नज़रों से बोली। शुमाइला ने गुलाबी वाला सूट उठाया और रुकैया बेगम ने बादामी रंग का सूट ले लिया। नायला ने फट से काले वाला सूट उठा लिया। खाला मैं ये ले लूँ, मुझे ये रंग बड़ा पसंद है। वो निहायत मासूमियत से बोली और मेरे पास इस रंग का एक भी जोड़ा नहीं है। वो निहायत चालाकी से वो सूट हथियाना चाहती थी। वो जानती थी कि वो सूट वो वदिया के लिए लाया है। मगर ये तो वक़ार साहब ने मुदाखलत की। हाँ, हाँ, तुम ले लो, ये तुम्हारे लिए ही तो लाया है आली। रुकैया बेगम ने बात काट कर जल्दी से बोला। शुक्रिया खाला, बहुत ही अच्छा सूट है आली। वदिया की आंखों की लौ बुझ गई। आली भी गुस्से से उठ गया। वक़ार साहब भी किताबें लेकर नागवारी से चले गए। नायला ने अपनी कामयाबी पर रश्क से शुमाइला को देखा तो वो भी मुस्कुरा दी। तुमने बर्तन नहीं समेटने क्या? शुमाइला वदिया को देखकर बोली जो खामोशी से एक तरफ खड़ी थी। वो बर्तन लेकर किचन में चली गई। आज वो काफी थकी हुई थी। बिस्तर पर गिरते ही वो दुनियाओं माफिया से बेखबर हो गई। आली उसके कमरे में रात गया आया मगर उसे सोता देखकर वो पलट गया। सुबह भी उसे मौका न मिला और वो लौट गया। ज़किया खाला काफ़ी अरसे बाद आई थीं, दोनों बहनें फिर से मिल बैठीं। "हाय आपा, तुम तो कह रही थी कि तुम इस मनहूस को टिकने नहीं दोगी, मगर 6 महीने होने को आए हैं और ये यहीं है।" "हाँ ज़किया, मनहूस को इतना कुछ सुनाती हूँ मगर गूंगी-बहरी बनी सुनती रहती है। घर का सारा काम इस अकेली से कराती हूँ, मगर मजाल है जो उफ़ तक कर जाए। पता नहीं अल्लाह ने किस मिट्टी से बनाया इसे। हाय मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि नायला मेरी बहू बने, मगर आली के अब्बू ने अपनी भांजी थोप दी मेरे लाल पर।" वो तअस्सुब से बोलीं, "हाय आपा, तूने मेरे दिल की बात कर दी। कसम ले लो आपा मेरी भी यही ख्वाहिश थी कि मेरी दोनों बेटियां तेरे घर की बहू बने। मेरी नायला भला किसी से कम है क्या और वो आली को भी पसंद करती है।" ज़किया बेगम की बाँछें यहाँ से वहाँ तक खुल गईं। वाक़ई ज़किया, रुकैया बेगम भी खुश हुईं। तो और क्या आपा, भला आली से बेहतर लड़का कहाँ मिलेगा और ये बात हकीकत थी। बस आने दो आली को, कहूँगी मैं उसकी शादी नायला से करना चाहती हूँ। ये तो ठीक है, मगर एक बात कह देती हूँ, वो उसे कल मुही को तलाक देगा तो ही नायला को भेजूँगी। हाँ, वो बोलीं, अरे तू फ़िक्र न कर, आली मेरी बात नहीं टालेगा। वो उनका हाथ थाम कर बोलीं। इस दफ़ा आली आया तो उन्होंने अपनी ख़्वाहिश का इज़हार किया। आली का दिमाग ही घूम गया। उसने साफ़ अल्फ़ाज़ में नायला से शादी से इनकार कर दिया और लौट गया। रुकैया बेगम ने ज़किया बेगम के गोश गुज़ार किया। अरे! ऐसे कैसे होगा? बस अब देखो आपा कि आली कैसे नहीं मानेगा जब वदिया खुद ही उसे छोड़ जाएगी। तुम फ़िक्र ना करो। उनका शैतानी दिमाग चलना शुरू हुआ। अब तो वदिया पर ज़िंदगी और भी तंग कर दी गई। आते-जाते ताने-तशने तो रोज़ का मामूल बन गया। मामी का तो बस नहीं चलता था कि उसे जान से ही मार दें। आली का जब फ़ोन आता तो मामी वदिया को आस-पास भी ना पटकने देतीं। वदिया की तो समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। उसका जैसे दिमाग ही माउफ हो गया था। कभी दिल में आता कि मामू से कहे, फिर ये सोचकर रुक जाती कि मामू मामी से कहेंगे और सारा नज़ला उस पर ही गिरेगा। खाना-पीना भी कम हो गया था, बस सर झुकाए वो खुद को घर के कामों में मसरूफ़ रखती थी। आज फिर नायला बेगम तशरीफ़ फ़रमा थीं। वो सीढ़ियों को साफ़ कर रही थी कि आवाज़ उसके कानों से टकराई। हाँ, तो और क्या। आली वहाँ से रोज़ाना मुझे फ़ोन करता है, मैं घंटों उससे बातें करती हूँ। वो माल्टे खाते हुए शुमाइला को बता रही थी, दरहकीकत वो वदिया को सुनाना चाहती थी। अच्छा, क्या कहता है वो? यहाँ पर तो बड़ा घुन्ना बना फिरता है, शुमाइला ने मज़े लेते हुए उससे पूछा और एक नज़र वदिया के सुस्त पड़े हाथों पर डाली। कहना क्या है, बस यही वो मुझे सबसे ज़्यादा मिस करता है। कह रहा था अब आऊँगा तो फिर घूमने चलेंगे और उसने वादा भी किया है।
कि मुझे शॉपिंग कराएगा, नायला ने फखरिया अंदाज में बताया। वदिया जल्दी से सीढ़ियों से उतरी और किचन में घुस गई। उसके अंदर अजीब इज़्तिराब पैदा हो गया था, जिस्म हौले-हौले काँप रहा था, आँखों में लबालब आँसू आए। नायला ने शुमाइला के हाथ पे हाथ मारा। क्यों, फिर मज़ा आया? शुमाइला बोली। ज़बरदस्त मज़ा आया, शुमाइला बोली। वदिया ने खुद को किचन के काम में मसरूफ करने की कोशिश की, मगर दिल अचानक उचाट हो गया। मुझे क्यों बुरा लगने लगा? वो जिसको मर्जी फोन करें। वो डस्टिंग वाला कपड़ा सिर पर फेंक कर बोली। क्यों बुरा ना लगे? शौहर है मेरे या नायला के, मुझसे तो कभी बात नहीं की और उससे घंटों फोन पर बातें, साथ ही बीवी वाली अजली जबान ऊद आई। वो खुद भी अपनी हालत से जंग कर रही थी, जो पल में तोला और पल में माशा हो रही थी। कभी गुस्सा आता कि आली ने उसे तो अहमियत नहीं दी और नायला को दी, और कभी बिल्कुल ही लाताल्लुक बनने को दिल करता। नहीं, मैं लाताल्लुक नहीं रह सकती, मुझे खुद अपने हक पर डटा रहना चाहिए। शौहर हैं आली अब मेरे, उसने फैसला किया। आली ने गुस्से की वजह से अगली बार लाहौर आने का फैसला मुलतवी कर दिया। ऊपर से उसे वदिया की बेरुखी पर गुस्सा था। उसने कितनी बार फ़ोन किया और एक बार भी वदिया से बात नहीं हुई थी। हर बार अम्मी से बात होती या फिर शुमाइला से। अम्मी की एक ही ज़िद, नायला से शादी और वदिया को तलाक, और ऐसा करना कम अज़ कम अब उसके बस में नहीं था। क्योंकि अब मामला दिल का था और वो दिल वो वदिया से लगा चुका था। रात को वो लॉन में टहल रहा था, उसने मोबाइल निकाला और घर का नंबर मिलाया। साथ ही एक नज़र कलाई पर बंधी घड़ी पर डाली। अभी तो जाग रहे होंगे, उसने खुद से कहा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? वली के फ़ोन उठाते ही वो बोला। मैं भी ठीक हूँ, बस घर याद आ रहा है। अकेले रह रह कर बोर हो गया हूँ यहाँ। वो मुस्कुरा कर बोला। अम्मी जाग रही हैं? हाँ, लो बात करो। और वली ने फ़ोन माँ को थमा दिया। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ? इस बार आई नहीं, तुम्हें घर याद नहीं आता क्या? रुकैया बेगम नाराज़गी से बोली। आता है अम्मी, बहुत याद आता है, मगर आपकी ज़िद पूरी करना मेरे बस में नहीं है। मैंने कौन-सा तुमसे खज़ाना माँग लिया है, बस अपनी ख़्वाहिश का इज़हार ही किया है। वो बदस्तूर नाराज़ थीं। अम्मी, आपकी ख़्वाहिश बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, मेरी ज़िंदगी का सवाल है और मैं अपनी ज़िंदगी किसी भी सूरत नायला जैसी लड़की के साथ ज़ाया नहीं कर सकता, आप ये ज़िद छोड़ दें। उसने सर पकड़ लिया अपना। हाँ, उस कलमुई के साथ गँवा सकते हो, जो तुमसे बात करना भी पसंद नहीं करती। कितनी बार मैंने कहा, बात कर लो, और उस मेम साहिबा का मिज़ाज ही नहीं मिलता, साफ़ इनकार कर देती है। उन्होंने ज़किया के प्लान पर अमल दरामद शुरू कर दिया था। क्या आपने उससे कहा था और उसने इनकार कर दिया? आली को यकीन ही नहीं आया कि वदिया ने बात करने से इनकार कर दिया है। हाँ, हाँ तो और क्या? झूठ बोलते हुए ज़बान लड़खड़ा गई थी। अच्छा, आली की मुर्दा सी आवाज़ आई। मैं बाद में फ़ोन करूँगा, अल्लाह हाफ़िज़। उसने लाइन काट दी, दिल जो बुझ गया था। अरे अम्मी, वदिया से बात करा देती आप। वली ने रिसीवर रखते देखा तो बोला। कहा था कि बात कर लो, मगर बोला मुझे उससे कोई बात-वात नहीं करनी। ज़बरदस्ती के रिश्ते मुझसे नहीं निभाए जाते। वो वदिया को देखकर बोली। वदिया की आँखों में जोत एकदम बुझ गई और ज़हन ज़बरदस्ती के रिश्तों में उलझ गया। यानी आली ने शादी ज़बरदस्ती की थी? आँखों के कटोरे फिर भरने को बेताब हो गए। आज उसके ताया का फ़ोन आया था, उसे अनजानी खुशी हुई थी। उन्होंने उसे वहाँ आने की दावत दी थी। बाजी पता है, कल आली का फ़ोन आया था, कह रहा था कि अगर खालू ज़बरदस्ती ना करती तो मैं कभी उससे शादी ना करता। नायला सोफ़े पर विराजमान थी, वो शुमाइला को बता रही थी, जबकि ज़किया और रुकैया बेगम भी पास ही बैठी थीं। वदिया चाय की ट्रे ला रही थी, जब ये अल्फ़ाज़ उसके दिल पर बम बनकर गिरे। हाँ तो और क्या, मुझसे भी कह रहा था, यही है मनहूस मेरे बेटे की खुशियाँ हड़प कर गई। रुकैया बेगम ने नफ़रत से कहा। वदिया चुप करके ट्रे रखकर निकल गई और टेरेस की सीढ़ियों पर बैठ गई। हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मुझे ये खुशियाँ नसीब क्यों नहीं होती? ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैंने किसी चीज़ पर, किसी रिश्ते पर अपना हक जाना, और वो भी ज़बरदस्ती का निकला। अब आएँगे आली तो कह दूँगी कि आप इस ज़बरदस्ती के रिश्ते को ख़त्म करके नायला से शादी कर लें। वो चुपचाप आँसू बहा रही थी। जब अपने साथ किसी के वजूद का एहसास हुआ तो ज़रा के ज़रा सर उठाया। रो क्यों रही है रानी? रिज़वान ने दाँत निकोसे। तू रो ना, वो हमदर्दी करते हुए अपने हाथ से उसके आंसू पोंछना चाह रहा था, मगर वदिया थोड़े परे सरक गई। अगर आज तू मेरी बीवी होती ना तो रानियों की तरह तुझे रखता, खूब ऐश कराता मेरी रानी, वो खिला में घूरते हुए बोला। वदिया ने मुंह मोड़ लिया। अचानक गेट खुला और आली अंदर दाखिल हुआ। दोनों को बैठा देखकर वो एकदम ठिठक गया, जबकि रिजवान के तो तोते ही उड़ गए। वो तेजी से उठा और अंदर चला गया। कदमों की चाप पर वदिया ने सर उठाकर देखा। उसे लगा शायद उसका वहम है कि आली खड़ा है। आंखों में पानी की वजह से वो ठीक से देख नहीं पा रही थी। आली सारे रास्ते यही सोचता रहा कि वदिया से मिलेगा तो ठीक तरह से क्लास लेगा, मगर उसे देखकर उसका सारा गुस्सा हवा हो गया। वो सुर्ख आंखें जिसमें से आंसुओं की लड़ियां बहकर रुखसारों को नम कर गई थीं, कातिले जान लग रही थी। यहाँ क्यों बैठी हो? लहजा इंतहाई नरम था। ओह वाकई आली है वो। एकदम उछल कर खड़ी हुई। कुछ बोलने के लिए उसने लब खोले ही थे कि अल्फाज जबरदस्ती का रिश्ता दिमाग में गूंजने लगे। वो चुपचाप अंदर की तरफ बढ़ गई और आली उसकी कैफियत पर कयास आराई करता ही रह गया। यकीनन कुछ ऐसा हुआ है जो नॉर्मल नहीं है। आली का दिमाग तेजी से चलने लगा।
और अंदर आकर जब खाला की पूरी फैमिली को देखा तो अपने ख्याल की तस्दीक होते हुए महसूस हुई। रुकैया बेगम ने आली को बढ़कर चूम लिया। माँ की याद नहीं आती तुझे? वो गिला कर रही थी। खाला भी गर्मजोशी से मिली। वदिया पानी ला। मामी ने हुक्म सादिर किया। वदिया पानी का गिलास लाई और आगे बढ़ाया। आली ने उसके चेहरे को देखा तो वो नजरें चुरा गई। वदिया की नजर अचानक ही नाइला पर पड़ी। रुखसार पर मुस्कुराहट और शर्म से ऐसी दोहरी हो रही थी कि खुद आली भी परेशान हो गया कि अचानक इसे क्या हुआ है जो यूं लाल हो रही है। उसका इरादा वदिया से बास परस करने का था, जो फोन पर उससे बात करने से इनकारी थी, मगर वो हाथ में ही नहीं आ रही थी। एक वाज़ेह गुरेज था, जहाँ वो आली से टकराती वहीं से कतरा कर निकल जाती। वो उससे किसी भी मौजू पर बात करना नहीं चाहती थी। पहले तो नाइला का इरादा सिर्फ खाला के यहाँ दौरे का था, मगर अब चूंकि आली की आमद हो गई थी, लिहाजा उसने रात रुकना उसके फर्ज के ऐन था। रात वो अपने कमरे में आया तो पीछे अम्मी भी आ गई। आली सोने लगे हो क्या? उन्होंने दरवाजे से ही पूछा। वो जो लेटने लगा था उठ बैठा। नहीं तो आए ना आप। वो बेड पर क्राउन से टेक लगाकर बैठ गया। बेटा तुमने मेरी ख्वाहिश पर कुछ सोचा है? वो उसके पास बैठते ही बोली। वो जल्द अज जल्द उसे मना लेना चाहती थी। एक बार वो खुद मान जाता तो वकार साहब का मुंह खुद ब खुद बंद हो जाता। आली की शक्ल पर वाज़ेह बेज़ारी उद आई। बेटा तुम अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो मेरी जान? वो उसके चेहरे पर हाथ फेर कर बोली। अम्मी मैं अपनी ज़िंदगी से मुतमईन हूँ, आप क्यों नहीं समझती? वो उनका हाथ अपने हाथों में लेकर बोला। कहाँ खुश हो तुम? देखो अपना चेहरा कैसे मुरझा गया है, कमज़ोर लगने लगे हो तुम। ये खुशी की अलामत है या बोझ ढोने की? वो नाराज़ सी गोया हुई। आली के चेहरे पर तबस्सुम बिखर गया। आप माँ की ऐनक लगा कर देख रही हैं ना, इसलिए ऐसा लग रहा है आपको। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अम्मी, बस आप फ़िक्रमंद ना हो। वो उन्हें इत्मीनान दिलाने लगा। बेटा मेरी बात मान ले। उस मनहूस से पीछा छुड़ा। मेरे बच्चे उसके सब्ज़ कदम से मुझे डर लगता है कि कहीं कुछ हो ना जाए। वो मुतफक्किर थी। अम्मी कौन से ज़माने में रह रही हैं आप? ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब तो फालतू की बकवास है। पिछले 4 माह से वो मेरी ज़िंदगी में शामिल है अम्मी। वो तंग आकर बोला। और एक बात अम्मी, मैं कम से कम आपकी ये ख्वाहिश पूरी करने का हौसला नहीं रखता। मैं एक बेकसूर लड़की की ज़िंदगी खराब नहीं कर सकता, और नायला और उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहता। उसने बहस को एक ही जस्त में समेट डाला। रुकैया बेगम उसका मुंह चंद सानिये तकती रही कि वही है जिसने उनकी कोई बात रद्द नहीं की। एक मान था उन्हें आली पर, मगर अब वो जिद पर अड़ गया था। वो खामोशी से उठी क्योंकि इस वक्त उसे बहस बेकार थी। मामी के हुक्म के मुताबिक उसने दूध गर्म कर दिया था। वो नायला को देख रही थी कि आए और आली को दे आए, मगर वो निदारित थी। आखिर वो खुद ही ऊपर की तरफ बढ़ी। उसका दिल तो नहीं कर रहा था, मगर दूध ठंडा हो जाता और इसका दोबारा गर्म करने का इरादा नहीं था, सो चारों नाचार उसे खुद ही जाना पड़ा। अम्मी के जाने के 5 मिनट बाद ही नायला आ गई। अभी उसे पहले ही गुस्सा था, ऊपर से उसकी आमद या वहशत, एक ये मेरा पीछा नहीं छोड़ती। उसने वही सूट पहना हुआ था जो वो खास कर वदिया के लिए लाया था। बाल खोले हुए रेड कलर की लिपस्टिक में वो अजीब हवनक लग रही थी। कम अज कम आली को तो ऐसा ही लगा। उसने एक नजर घड़ी पर 11 बजाती सुई पर 11 बजाती सुई और फिर उसकी तैयारी को देखा। सस्ता सा परफ्यूम था, शायद उसकी बू, खुशबू कहना गलत होगा, से उसका दिमाग घूमने लगा। ऊपर से सूट को देखकर आली का पारा और ऊपर चढ़ने लगा। कैसी लग रही हूं मैं? वो लहरा कर बोली। जो तुम सूट लाए थे ना, देखो मुझ पर कैसा लग रहा है। आली ने सिर्फ उसे घूरा था। वो खुद ही बेतकल्लुफी से बेड के किनारे पर बैठ गई। शीशे में उभरते वदिया के अक्स को देखा तो चेहरे पर शातिराना मुस्कुराहट आ गई। वो बाहर दूध का गिलास लिए खड़ी थी। दरवाजा पूरी तरह वार नहीं था, इसीलिए आली की नजर वदिया पर नहीं पड़ी। पता है आली, जब तुमने फ़ोन किया था ना, मुझे इतनी खुशी हुई थी। वो मज़े लेकर बोल रही थी। उसकी पूरी कोशिश थी उसे अपनी तरफ मुतवज्जो कर सके। वो बेतकल्लुफ़ी से थोड़ा और करीब हुई। आली चुप करके उसके हर कातों सकनात नोट कर रहा था। वदिया, जो कि अंदर आने का इरादा कर रही थी, उसके कदम खुद ही थम गए। वापस पलटने का हौसला भी खत्म हो चुका था। वो वहीं जम गई। आली की खामोशी चीख-चीख कर कह रही थी कि नायला जो कह रही है वो दुरुस्त है। पता है मैं तुम्हें कितना मिस करती हूँ आली, तुम मुझे इतने याद आते हो कि क्या बताऊँ। मुझे पता है कि तुम भी मुझे मिस करते होगे, है ना? वो खुद तस्दीक करने लगी। पता है खाला भी यही चाहती हैं, जो हम दोनों चाहते हैं, वो पुरजोश लहजे में बता रही थी। और आली सिर्फ घूर रहा था। वदिया की आंखों से आंसू टप टप गिरने लगे। उससे ज्यादा सुनने का हौसला नहीं रखती थी, सो चुपचाप पलट गई। मुझे पता है आली, जितनी मोहब्बत मैं तुमसे करती हूँ उतनी ही तुम मुझसे भी करते हो। वो उसका हाथ थाम कर बोली। बस अपनी बकवास बंद करो। आली का सब्र का पैमाना आखिर को लबरेज हुआ। क्या बकवास कर रही हो तुम? जो मुंह में आ रहा है बके जा रही हो। वो बेड से खड़ा हुआ। पहली बात, ये सूट मैं तुम्हारे लिए नहीं बल्कि अपनी बीवी वदिया के लिए लाया था। वो दहाड़ा। नायला के हवास मुश्तइल हो गए। उसने फौरन आईने में झाँका। वो वहां नहीं थी। उसे थोड़ी तसल्ली हुई, मगर आली के लहजे से उसे डर महसूस होने लगा। दूसरी बात, मुझे कोई शौक नहीं है तुमसे बात करने का। अम्मी ने कहा कि खालू की तबीयत ठीक नहीं है, तो उनकी खैरियत पता करने के लिए मैंने फोन किया था। और मुझे किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा कि मैं तुम्हें याद करूं। और ये बात अपने दिमाग से निकाल दो कि मैं कभी तुमसे मोहब्बत करता हूँ या करूंगा। ऐसा होना नामुमकिन है, समझी तुम?
वो शोला बरसाती आंखों से उसे घूर कर बोला। नायला को इस तरह के रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी। उसका हल्क खुश्क हो गया। मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ, बहुत चाहता हूँ उसे, और एक बात दिमाग में बिठा लो कि आइंदा भूल कर भी मेरे कमरे में कदम ना रखना। समझी तुम? वो उसके करीब आकर दहाड़ा। अब निकलो यहाँ से, और आइंदा दिमाग में रखना मेरी बात। उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया। नायला ऐसे निकली जैसे पीछे आग लगी हो। उसने नीचे पहुंच कर सांस लिया। अल्लाह तौबा, कितने गुस्से वाला है ये तो। मैंने इतने प्यार से बात की थी और वो काट खाने को दौड़ा। शुक्र है कि उस वदिया ने कुछ नहीं सुना, वरना सब किए कराए पर पानी फिर जाता। वो सोफे पर बैठते हुए बोली। वदिया के शक पर आज यकीन की मुहर लगी थी। आज उसे पक्का यकीन हो चला था कि आली ने वाकई जबरदस्ती शादी की है। अब क्या करना ये उसे समझ में नहीं आ रहा था। उसने आंखों को रगड़कर साफ कर डाला। ये जो मिनट मिनट पर पानी निकल आता है ना, ये भी मुसीबत है। वो बार बार आंखें रगड़ रही थी, मगर आंसू थे कि बहे जा रहे थे। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसे किस बात का इतना दुःख उसे इस बात का इतना दुःख क्यों है कि ये रिश्ता महज़ दबाव है, ना समझौता है और ना दिली है। उसे कभी भी आली से कोई दिलचस्पी नहीं रही थी, फिर अब क्यों उसे इतना बुरा लग रहा था? आली मुसलसल अपने कमरे में टहल रहा था। एक अम्मी की बातें, दूसरा नायला के बेबाक रवैया, तीसरा वदिया का कतराना। उसका तो दिमाग ही शल हो गया था। वो मुसलसल अपने पोरों से सर को सहला रहा था। रगें दर्द से फटी जा रही थी। बहुत हो गया, अब ये मामला अब्बू के पास ही लेकर जाना पड़ेगा। अब फैसला हो जाना चाहिए। अब ये मामला निपटा कर ही वापस जाऊँगा। उसने पुख्ता इरादा किया। सुबह जो नहा कर निकला, उसका इरादा नाश्ते की मेज़ पर ही किस्सा ख़त्म करने का था। वो तौलिए से बाल रगड़ रहा था कि मोबाइल बज उठा। फ़ोन ऑफ़िस से था, उसे मीटिंग के लिए बुलाया गया था। मुल्क के हालात को लेकर आईजी साहब ने फिर मीटिंग बुलाई थी। मुल्क में हर तरफ अफ़रा-तफ़री का आलम था। एक तरफ कुदरती आफात का जोर था तो दूसरी तरफ दहशतगर्दों ने बाजार गर्म कर रखा था। आइंदा के लाया अमल तैयार करने के लिए आईजी साहब ने सब ऑफिसर्स को बुलाया था। मीटिंग चूंकि 11 बजे शुरू होनी थी, लिहाजा उसे फौरन निकलना पड़ा क्योंकि 10:30 हो रहे थे। उसने बात करने का इरादा मुलतवी कर दिया और ऑफिस के लिए निकल पड़ा। रात फिर ठीक से सो नहीं पाई थी, इसी वजह से आँखें दुख रही थी, मगर बिस्तर छोड़ने के अलावा कोई चारा भी नहीं था। वो उठ गई। अभी वो किचन में आई और तवा चूल्हे पर रखकर फ्रिज से आटा निकाल रही थी कि सबके लिए पराठे बनाए। बाहर आली की गाड़ी की आवाज़ आई। उसने खिड़की से झाँका। वो गाड़ी लेकर निकल रहा था। रात की बातें फिर से ताज़ा हो गईं। अब ये सब अज़ियत देने लगा था। वो खुद भी मामलात निपटा लेना चाहती थी। वो इंतज़ार की सूली अब तकलीफ़देह बनती जा रही थी। कहीं तो किसी तो किनारे पर लगना ही है। उसने सोचा और फिर सर झटक कर मसरूफ़ हो गई। आली को बुलाओ बेटा, वक़ार साहब ने मेज़ पर उसे ना पाया तो वदिया से कहा। नायला का निवाला हल्क में अटक गया। उसने कनखियों से शुमाइला को देखा। उसका हाल भी ज़्यादा अलग नहीं था। वो जानती थी कि आली हिसाब-किताब सँभालने वालों में से नहीं है। वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। और रात वाले अंदाज़ से नायला को बखूबी अंदाज़ा हो गया था। वो तो चले गए हैं मामू, वदिया ने धीरे से कहा। हैं? सुबह ही चला गया? ना आने का बताता है और ना जाने की खबर। रुकैया बेगम ने उसके यूँ चले जाने पर ख़फ़ा हो गईं। कहाँ गया है वो बेटा? तुम्हें बता कर गया होगा। मामू ने दोबारा पूछा। नहीं, मुझे तो कुछ नहीं कहा है। ये कहकर वो किचन में वापस चली गई। इससे पहले कि कुछ और पूछे खुद ही निकल जाऊं। शाम को मामी का मूड फिर गर्म था। ज़किया बेगम जब नायला को लेने आई तो ज़िक्र हुआ। नायला ने भी हल्के-फुल्के अंदाज में आली की नागवारी का ज़िक्र किया। अल्लाह क्या करूँ मैं उसका, मेरा तो बस नहीं चलता। रात को मैंने भी बात की थी मगर वो है कि मान ही नहीं रहा। उनसे भी मैंने कुछ नहीं कहा है। अगर आली के अब्बू को भनक भी पड़ गई ना तो तूफ़ान आ जाएगा। मैंने तो पूरी कोशिश कर ली है मगर वो है कि बस इनकार पर इनकार किए जा रहा है। उन्होंने सर पकड़ लिया। तुमने ठीक से दबाव ही नहीं डाला होगा आपा, वरना तो पहले बड़ी फर्माबरदारी करता था। वो अब कौन-सा इश्क सवार हो गया है। पहले तो नज़र भर कर देखना गवारा नहीं था उस कलमुही को, अब छोड़ नहीं रहा। बुरा ना मानना आप, मुझे तो लगता है कि कोई जादू-टोना कराया होगा इस लड़की ने आली पर। हाँ, मुझे भी यही लगता है, वो पुरसोच अंदाज में बोली। वदिया ने अभी सीढ़ियों पर कदम रखा ही था कि मामी ने उसे सुनाना शुरू कर दिया। न जाने क्या खिला दिया है मेरे बच्चे को कि मेरी बात ही नहीं मान रहा। मनहूस लड़की, बदलिहाज, बदचलन ना हो तो। उनके मुँह से गुस्से में अंगारे निकल रहे थे। न जाने तेरे माँ-बाप ने कौन से गुनाह किए थे कि तेरी जैसी सब्ज़ कदम लड़की पैदा हुई। पहले उन्हें खा गई, फिर अपनी नानी को भी नहीं बख्शा, अब मेरे बेटे के पीछे पड़ गई है। जान छोड़ दे उसकी लड़की, ऐसे क्या खड़ी है तू वहाँ? उन्होंने सर झुकाए वदिया को देखा। उसने सर उठाया तो जब से आंखें लाल हो रही थीं। देख ज़किया, कैसी गुन्नी मीसनी है, ये कैसी भोली शक्ल है इसकी। लोगों को रिझाने वाली सारी अदाएँ हैं इसमें, इसीलिए तो न जाने किसके साथ 2 रातें गुज़ार कर मुँह काला करके आई है। उसकी माँ भी ऐसी ही घुन्नियों मीसनी थी। ए बीबी, ये अदाएँ ना घर से बाहर दिखाया करो, अपने घर के मर्दों को तो बख्श दो। यही अदाएँ दिखाकर तूने हथिया लिया है मेरा बेटा। उनका साँस फूलने लगा था मगर गुस्सा किसी तौर कम नहीं हो रहा था। जा नायला, पानी ला तो, देख तेरी खाला का साँस फूल रहा है। उन्होंने फौरन हमदर्दी की। और तू जा यहाँ से, मेरी बहन की भी जान लेगी, चल दफ़ा हो जा।
उन्होंने वदिया को कहा। वो मुर्दा कदमों से चलने लगी। खाला तुम पानी पियो, दफा करो इस मनहूस को। आज नहीं तो कल आली इसे छोड़ देगा। बस तुम फिक्र ना करो, मुझे अपनी मोहब्बत पर पूरा यकीन है। नाइला ने भी अपना मोहरा चलाया। आखिर को उसका हिसाब तो चुकता हो गया था। रात को आली ने उसकी वजह से उसे बेइज्जत किया था, तो भला वो कैसे पीछे रहती। हिसाब बेबाक करना भी तो जरूरी था। खाला अंदर जाएं, आराम करें। शुमाइला ने भी उनकी हालत देख कर कहा। हाँ ठीक कह रही हूँ, मैं अब आराम करूंगी। वो कहकर उठ गई। मजा आ गया अम्मी, अब कहीं जाकर चैन मिला है मेरे दिल को। बड़ा बोल रहा था ना मेरी बीवी वदिया, अब उसकी वदिया आठ आठ आंसू रोएगी। नाइला अपने नाखूनों को घूरते हुए बोली। हाँ तो और क्या, बस ये बला जाए तो न्याज दूंगी। ज़किया बेगम ने उसे गायबाना सलवातें सुनाई। फिक्र ना करो अम्मा, बस थोड़ा इंतजार और फिर हम ही राज करेंगे इस घर पर। शुमाइला ने माँ के कंधे पर तसल्ली भरा हाथ रखा। तीनों ही हंस दिए। आज तो बदिया को सांस लेना भी मुहाल लग रहा था। पता नहीं क्यों सारे उसके पीछे पड़े थे। आज तो मामी ने उसके वालिदैन को भी नहीं छोड़ा था। वो तकिया में मुंह देकर रो रही थी। मुझे नहीं रहना यहाँ, मैं चली जाऊंगी यहाँ से बस। अल्लाह जी कोई रास्ता निकाले, मुझे निकालें इस जेल से। यहाँ कोई मेरा अपना नहीं है, कोई भी नहीं। वो ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी। आज उसका दिल बहुत भारी हो रहा था। लग रहा था किसी ने पहाड़ उठाकर रख दिया। उसे अपनी सांसें रुकी हुई महसूस हो रही थी। ऐ अल्लाह, मैंने हर ज़ुल्म, हर ज़्यादती बर्दाश्त की है, मगर आज तक कभी अपनी मौत नहीं मांगी, मगर आज मैं अपनी मौत की दुआ कर रही हूँ। मुझे मौत दे दे, मुझे इस ज़िंदगी से आज़ाद कर दे। मेरी रूह और जिस्म का ताल्लुक ख़त्म कर दे मेरे मालिक। वो दोनों हाथ उठाकर अपनी मौत की दुआ करने लगी। आज उसका दिल बुरी तरह टूटा था और उसका दर्द वो पूरे वजूद में महसूस कर रही थी। अगले 2 दिनों तक वो रोती रही। खाना पकाकर निकली तो डोर बेल बजी। रहने दो, मैं देखती हूँ। शुमाइला उसे मना करके आगे बढ़ी। वो लाउंज में आकर चीजें समेटने लगी। वकार साहब अपने अजीजों से मिलने गए थे और वली भी ऑफिस में थे। जाओ वदिया, तुम्हारे रिश्तेदार आए हैं। शुमाइला कहकर किचन में चली गई। मेरे रिश्तेदार? उसने खुद से सवाल किया और सर पर दुपट्टा दुरुस्त करके चल पड़ी। ड्राइंग रूम का दरवाजा खुला था। वो अंदर दाखिल हुई। अंदर एक अधेड़ उम्र बुजुर्ग सी औरत, उनके साथ एक ज़ईफ़ से आदमी थे। अस्सलाम वालेकुम, उसने धीरे से सवाल किया। वालेकुम अस्सलाम थे, इधर आ। औरत ने उसे गले लगाया। उसके लिए चेहरा शनासा लग रहा था, मगर रिश्ता समझ में नहीं आ रहा था। मर्द ने भी सर पर हाथ रखा। अरे लगता है तूने पहचाना नहीं, मैं तेरा ताया हूँ और ये तेरी ताई। उन्होंने उसकी मुश्किल आसान की। ओ, उसके चेहरे पर तबस्सुम बिखर गया। वो बमुश्किल एक दफा ही तो मिली थी। रस्मी गुफ्तगू के बाद उन्होंने उसे अपने साथ चलने को कहा। वैसे भी उसका अब यहाँ दिल नहीं लग रहा था। मॉल में पिछले कुछ दिनों से काफ़ी कशीदगी थी। उसे लगा जैसे खुदा ने उसकी सुन ली हो। वो बिला तरद्दुद मान गई। मैं मामी को बता दूँ? उसने पूछा। हाँ, हाँ बेटा ज़रूर बता, औरत ने प्यार से कहा। वो उठकर मामी के कमरे में चली आई। मामी, वो ताया ताई आए हैं, उसने डरते-डरते कहा। तो क्या करूँ? खिदमतें करूँ कि बेगम साहिबा के रिश्तेदार आए हैं? वो काट खाने को थीं। उनका इश्तियाल किसी तौर कम नहीं हो रहा था और उसकी एक बड़ी वजह आली का बगैर मिले चले जाना और फिर राब्ता भी ना करना था और कसूरवार वदिया भी गिरदानी गई। वो मुझे लेने आए हैं, मैं जाऊँ? उसके होंठ खुश्क हो रहे थे, जिस्म हौले-हौले काँपने लगा, मामी के सख्त रवैये से। हाय हमारे ऐसे नसीब का! उन्होंने एक और वार किया। वो चुपचाप खड़ी रही। मामी के हाँ या ना का इंतज़ार था। तुम्हारी मर्ज़ी बीबी, जाना है जाओ और नहीं तो तुम्हारी मर्ज़ी, मगर कल कहला ये मत कहना कि मामी ने धक्के मार कर निकाला है। उन्होंने इजाज़त भी दी तो काँटों में लपेट कर। जी, वो कहकर निकल गई। कमरे में आई, अपना ज़रूरी सामान पैक किया। इतने में उसे 15 मिनट लग गए। वो दोनों बेचारे अकेले होंगे। उसने जल्दी-जल्दी हाथ चलाया। उसके अज़ीज़ थे तो उन्हें किसने पूछना था? वो उनके साथ गाँव के लिए रवाना हुई। दिल उदास था मगर मोहब्बतों की शिद्दत हावी रही। ताया-ताई का रवैया, उनकी शफ़क़त ने दिल पर फाया रखा था। गाँव में उनका इस्तकबाल बस वाजबी सा था, ना तो गर्मजोशी थी और ना ही बिल्कुल ठंडा रवैया। बस सलाम दुआ ही हुई जैसे अजनबियों से होती है। घर काफ़ी कुशादा था, दरमियान में बड़ा सहन था। मकान पुख्ता बना था मगर सहन में मिट्टी थी। काफ़ी पौधे और दरख्त थे। ये एक छोटी हवेली नुमा घर था। कमरे भी बड़े-बड़े और कुशादा थे। बड़े ताया और ताई के 2 बेटे और 1 बेटी थी। एक बेटा और बेटी शादीशुदा थे और बाल-बच्चों वाले थे। दूसरे ताया के भी 3 बेटे थे जो शादीशुदा थीं। हालाँकि दोनों ही उससे छोटी थीं, मगर वहाँ बेटियों की जल्दी शादी का रिवाज था। बड़ी वाली की तो खुद एक बेटी थी, जबकि दूसरी की अभी शादी के को चंद माह ही हुए थे। घर के हिस्से बने थे। बड़ी ताई ने उसे अपने हिस्से में ठहरा लिया और कोई उसकी खातिर मदारत के मूड में नहीं था। वक़ार साहब लौटे तो वदिया को ना पाकर उन्होंने रुकैया बेगम से पूछा, ओह! वो तो अपने दधियाल गई है, उसके ताया-ताई लेने आए थे, उनके साथ गई है वो। और तुमने जाने दिया, जबकि मैंने मना भी किया था कि अगर कभी उसके दधियाल से कोई लेने आया तो उसे ना भेजना। उन्हें गुस्सा चढ़ गया। शुमाइला ने भी किचन से झाँका और वली भी अब्बू की आवाज़ सुनकर आ गया। लो, मैं भला मना क्यों करती, हैं? फिर बुरी भी बनती कि कहीं जाने नहीं देती, इसे घर में कैद करके रखा है। आप ना बंदूक मेरे कंधे पर रखकर चलाया करें।
वो उल्टा उन पर नाराज हुई। तुम ओहो! गुस्से से मुठ्ठियां भींचे और उड़ गए। रुकैया बेगम ने हुंकार भरा। उन्होंने बाहर आकर आली को फोन मिलाया। क्या हाल है बेटा तेरा? उन्होंने आवाज को खुशगवार बनाया। हालांकि वदिया के वहां जाने से उन्हें काफी परेशानी हुई थी। वकील साहब ने सख्ती से ताकीद की थी उसे वहां कम से कम अकेले ना भेजें। अबू आप परेशान हैं? आली ने आवाज से अंदाजा लगाया। नहीं बेटा, ऐसी कोई खास बात नहीं है, उन्होंने तहम्मुल से कहा। अच्छा ये बताओ कि तुम आओगे कब तक? नहीं अब्बू कोई बात है, आप मुझे बता नहीं रहे। घर में सब खैरियत है ना? वो तशवीश से बोला। हाँ हाँ अल्लाह का करम है, सब खैरियत है। बस बेटा वो वदिया है ना, क्या हुआ है उसे? वो ठीक तो है ना अब्बू? आली ने बेताबी से बात काट कर बोला। हाँ वो ठीक है, अपने ताया के साथ चली गई है। क्या? किससे पूछ कर गई है? वो हैरान हुआ। और आपने जाने भी दिया उसे? हालांकि आप तमाम हालात से बखूबी वाकिफ हैं अब्बू। वो नाराज हुआ। बेटा मैं भी घर पर नहीं था, वरना हरगिज उसे जाने ना देता। मगर खैर तुम कब तक आओगे? फिर उसे इकट्ठा लेने चलेंगे। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा इस तरह उसका जाना वहाँ। वो परेशान थे। हूँ ठीक कह रहे हैं। आज जुमेरात है, मैं हफ्ते को आऊंगा इंशाल्लाह। वो बोला। ठीक है, अपना ख्याल रखना और फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह खैर करेगा। अच्छा ओके, अल्लाह हाफिज। उन्होंने उसे दुआएं देकर फोन रख दिया। अपनी तरफ से तो वो किसी हद तक पुरसुकून हो गए थे, मगर उधर आली का बेचैनी से बुरा हाल था। भला उसे वहां जाने की क्या जरूरत थी? बेवकूफ लड़कियां हमेशा कुछ उल्टा ही करती है, खासकर मेरे मामले में तो उसे खास बैर है। कुछ वो उसे कोसने लगा। आज यहाँ आए उसे चौथा दिन था। ताई उसे कोई काम करने नहीं देती थी। उनकी बहू और चंद एक मुलाजिम काम करते थे। उन्होंने उसे खास ताकीद की थी कि वो आराम करे और किसी काम को हाथ ना लगाए। सारा दिन फारिग रहकर वो बोर हो गई थी। टीवी देखने की उसे आदत ना थी और कोई काम करने को नहीं था। यहाँ पर उसे आराम था, मगर फिर भी एक अजीब बेचैनी सी थी, जिसे वो कोई नाम नहीं दे पा रही थी। ताया के बड़े बेटे असगर से उसका सामना 2 बार हुआ था और उसे देखकर उसे अजीब सा डर महसूस होता था। ऊंचा लंबा कद, सांवला रंग और बड़ी बड़ी मूछें, जिसे हर वक्त वो ताव देता रहता था। उसकी बीवी भारी भरकम औरत थी। दोनों का रवैया बस वाजिबी सा था। ठीक से बात नहीं करते थे। उसने कोशिश की थी बात करने की, मगर आगे से इतनी सर्द मेहरी का मुजाहरा किया गया कि वो चुप हो गई। अब तक वो ताया के दूसरे बेटे से नहीं मिली थी। सुनने में आया था कि वो डेरे पर होता है ज्यादातर। उसका दिल अंदर से घबराने लगा। लाइट नहीं आ रही थी, इसलिए वो बाहर सैन में आ गई। छोटी ताई बाहर चारपाई पर बैठी सब्जी बना रही थी। उनके साथ उनकी मंझली बहू बैठी थी। बड़े से सैन में उनके सबसे बड़ी बहू हाथ से कपड़े धो रही थी। वो चलती हुई चारपाई के किनारे पर टिक गई। आज क्या पका रही हैं ताई अम्मी? उसने प्यार से पूछा। आलू मटर गोश्त बना रही हूँ पुत्र, वो पुचकारी। दादी थोड़ी मटर ही दे दो। उनकी 12 साला पोती ने आकर हाथ फैलाया। चल जा, अब तीसरी दफा आई है मटर लेने। उसकी चाची ने उसे डांट दिया। उफ चाची, अभी तो मैंने पहली दफा ही मांगे हैं। वो तो कोमल ले गई होगी। उसने अपनी जुड़वा बहन का नाम लिया। चल दे भी दे अब। छिम कोई गल नहीं। उसकी दादी ने हिमायत की। वो मटर लेकर दौड़ती हुई चली गई। वदिया ये देखकर मुस्कुरा दी। साथ ही घर में मिट्टी में लिथड़े बच्चे शोर मचाते दाखिल हुए। हाय अल्लाह, इतने गंदे होकर कित्तू आए हो तुसी? चेदो भी बाहर निकली। वो ताई हम मैदान में खेलने गए थे ना, बड़ा मजा आया, बच्चों में से एक बोला। रुको तुसी सारे दे सारे ओन दसनी आ तुआनू मैं। कपड़े धोती नसीमो हाथ में कपड़े धोने वाला डंडा उठाकर उनकी तरफ बढ़ी। अपनी माँ के तेवर देखकर वो सब 9 2 11 हो गए। वदिया हंसने लगी, फिर वो उठकर अंदर चली गई। फेमू ने जाते जाते छेदू से पूछा, इन्हू क्यों लाए हो? पहले ते कदी मुंह नहीं लगाया। इन्हों हनघार ले आए ने गल की है। भाभी मुझे तो लगता है यकीनन कोई खिचड़ी पक रही है। इस असगर भाग के दिमाग में उड़ती उड़ती खबर है कि वो उसकी शादी नदीम से कर देना चाहते हैं। छेदू ने अपनी तरफ से बड़ी राजदाराना बात की। हैं असगर, बगैर फायदे तो कोई काम नहीं करदा। माँ प्योते बेचारे बस चुप करके वेखन लिए ने। छोटी ताई ने ताज्जुब से कहा, माँ जी मैनू तो लगदा है एनू ਇਹਦੀ जायदाद दे चक्कर विच ले आया होएगा। नसीमो ने मटर वाली टोकरी उठाई। अल्लाह भला करे इस बच्ची दा, बड़ी चंगी कुड़ी लगदी है। उन्होंने दुआ दी। शुमाइला का घर का काम कर कर के बुरा हाल हो गया था। उसकी अपनी हालत भी ठीक नहीं रहती थी और अब खाला से भी ज्यादा काम नहीं होता था। वो खाना बना रही थी कि फोन बज गया। हेलो कौन है? वो बेजारी से बोली। अरे आपा तुझे क्या हुआ है? मुझे तो लग रहा है कि मौजें होंगी तेरी। वो हैरानी से बोली। अरे कहाँ मेरे नसीब में मौजें, कहाँ वो कलमुही क्या गई, सारे घर का काम मेरे सर पर आ गया। खाला ने तो हाथ खींच लिए कि जी मेरे जोड़ों में बड़ा दर्द है, बस बुढ़िया को आराम करने के अलावा कुछ नहीं आता। नायला मेरी बहन, तू ही आ जा मेरे पास रहने के लिए। वो बड़े प्यार से बोली। हाय आपा जरूर आती, अगर मुझे बुखार ना होता। हाँ आ रही हूँ मम्मी। अच्छा आपा रखती हूँ। उसने खड़ाक से फोन बंद कर दिया।
शुमाइला ने हैरानी से फोन को देखा, खुद गर्ज मतलबी। जब काम था तो आपा आपा, और अब देखो साफ दामन बचा लिया। आपा बुखार हैं? वो मुंह चिढ़ाकर बोली। वदिया नहा कर निकली और दुपट्टा ठीक किया। वो तौलिया को बाहर धूप में डालने जा रही थी कि अचानक किसी से बुरी तरह टकरा गई। लंबा ऊंचा सा वो आदमी था। देख कर नहीं चल सकते आप? वो नागवारी से बोली। वो चुपचाप उसे देखता रहा। उसकी शक्ल असगर भाई से बहुत मिलती जुलती थी। वो बड़ी महविया से वदिया को घूर रहा था। ऐसे उलझन होने लगी। वो इधर उधर देखने लगी। अरे दीमू, मेरे पुत्तर, आ गया तू डेरे से? माँ सदके जाए। ताई उसके पीछे से निकल कर आए और सामने खड़े आदमी को चूम लिया। 2 दिनों बाद तूने शक्ल दिखाई अपनी माँ को। वो उसे चूम रही थी, जबकि उसकी नजरें वदिया के चेहरे का तवाफ कर रही थी। उन्होंने उसकी नजरों का जाविया देखा तो मुस्कुरा कर बोली, दीमू, ये तेरे चाचा की कुड़ी है वदिया। और वदिया पुत्र, ये मेरा दूजा पुत्र है दीमू। उन्होंने तारुफ कराया। वदिया उसकी मुसलसल घूरती नजरों से कुछ डिस्टर्ब हो गई। उसी वजह से वो कतराती हुई निकल गई। आजा पुत्र, कुछ खा ले, आजा, माँ सदके जाए। वो दीमू को लेकर आगे बढ़ी। वदिया को लेकर वो बहुत परेशान था। उसने राब्ता नहीं किया था और इत्तेफाक से वहां का नंबर उनके पास नहीं था। वो हफ्ते के बजाय जुम्मे को ही आ गया था। रुकैया बेगम उसे अचानक देखकर निहाल हो गई थी। अरे आली बेटा, तुम इतनी जल्दी आ गए? आजा मेरे बेटे। उन्होंने उसे सफरी बैग के हमरा देखा तो बोली और बाहें फैलाई। जी अम्मी, इस बार आना पड़ा मुझे। आपने वदिया को क्यों जाने दिया, जबकि आपने न मुझसे पूछा और न अब्बू को बताया? वो बिला किसी तमहीद के बोला। वदिया का नाम सुनकर उनका मुंह कड़वा हो गया। हाँ, जाने दिया तो मुसीबत, ना जाने देती तो और बुरी बनती। अम्मी, अभी मैं बहुत थक गया हूँ, बहस के मूड में नहीं हूँ, वो उठते हुए बोला। पर बेटा खाना? अम्मी, मुझे भूख नहीं है, वो बैग उठाते हुए बोला, जबकि वो हैरान और परेशान उसे देखती रही। हैं? इस भला कब से उसकी इतनी फिक्र होने लगी? वकार साहब अपने दोस्त के यहाँ से वापस आए तो आली भी सोकर उठ गया। वो भी नीचे आ गया। अस्सलाम वालेकुम अब्बू जी। वो बशाश सा नीचे उतरा। ये हो गई 5 किस्त। अब हमारी आखिरी किस्त रहती है। और इस किस्त में हमने देखा स्टोरी अच्छी है, मगर ये वधिया कुछ ज्यादा ही ऐसे नहीं है कि सब सुन लेती है। भाई कुछ तो बोलो, कुछ तो मुंह से निकालो। अगर तुमको कोई बात भी है तो आली से बात करे भाई। वो भी नहीं उससे होता है। और बातें भी सुनती हैं तो बस पूरी बात सुने ना। ये क्या कि आधी बात सुन के चली गई। बातें सुननी है तो पूरी खड़ी होके सुनो। आधा सुनते हैं, आधा सुन के आप नहीं सुना जा रहा है, चलिए। ये क्या होता है? कामी की बात नहीं सुननी थी। हाली तो ठीक है फिर भी। वो समझता है कि हाँ कुछ गड़बड़ है, कुछ ऐसे हुआ, कुछ वैसे हुआ। मगर इसको नहीं समझ में आती। और वो भी पहले नहीं बोल रहा है। वो पहले उसकी हरकतों सकनात देख रहा है। वे पहले ही बोल देते कि दूर हटो। नहीं, जब वो पूरी बात कर लेगी और वो हीरोइन बेचारी रो धो के चली जाएंगे तो फिर ये कहेंगे दूर हटो। पहले हटाना चाहिए ना। और दूसरा, नाइला, ऐसी लड़कियां होती है वाकई। खैर, चलें आगे हम पढ़ते हैं आखिरी किस्त अपनी। अस्सलाम वालेकुम अब्बू जी। वो बशास सा नीचे उतरा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, तुम जल्दी आ गए। गैर मुतवक्को तौर पर देखकर मुस्कुराए। जी अब्बू, मुझे इतनी फिक्र हो रही थी उसकी कि मुझे आना ही पड़ा। वो उनके पास बैठते हुए बोला। आप गए थे अब्बू वहाँ? उसने पूछा। नहीं बेटा, मैं तो नहीं गया, मगर वकील साहब से मुलाकात हुई थी मेरी। उन्होंने मुझसे यही कहा है कि ज्यादा फिक्र की बात नहीं है। वो अगर घर गई है तो ठीक है, बस उन्हें फिक्र उसके सबसे बड़े ताया के बेटे असगर की है। उनके मुताबिक वो कुछ सरफिरा शख्स है। वसीयत से सबसे ज्यादा तकलीफ उसे ही हुई है। और तशवीश की बात यह है कि उस घर पर और गांव में भी उसका राज है। आली बड़ी तवज्जो से सुन रहा था। हूँ अब्बू, मैं कराता हूँ उस बंदे की इंक्वायरी। शुमाइला चाय ले आई तो दोनों गैर महसूस अंदाज में खामोश हो गए, जिसे उसने बड़ी शिद्दत से महसूस किया, मगर चुप रही। अगले दिन वो दोनों वदिया के घर गए, मगर मायूसी हुई। घर वालों के मुताबिक वो अपनी फुप्पी के घर गई हुई थी। वो कुछ देर बैठकर लौट आए। अब्बा, मैंने कह दिया ना कि उस कुड़ी से बात करें तो मतलब करें। मैं चाहता हूँ कि उसकी और दीमू की शादी करा दी जाए। घर की बात घर में ही रह जाएगी। मगर पुत्तर, तुझे दीमू का तो पता है ना? कमजोर आवाज ताया अब्बू की आई। कुछ नहीं हुआ उसे, बस मैं चाहता हूँ कि वदिया और दीमू की शादी जल्द अज जल्द हो जाए। अम्मा तू बात कर ले। बल्कि बात क्या करनी है, बस तैयारी कर तू शादी की। असगर की आवाज आई। वदिया को अपने पांव से जमीन सरकती हुई महसूस हुई। उसने तमाम बातें सुन ली थी। वो पानी लेने जा रही थी कि आवाज ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जो कर लिया। वो दरवाजे के करीब होकर सुनने लगी थी। उफ खुदाया, ये क्या हो रहा है? वो बड़बड़ाई और फिर आहिस्तगी से वहां से हट गई। उसे नींद नहीं आ रही थी। वो बेचैनी से कमरे में टहल रही थी। अल्फाज तरतीब दे रही थी कि सबको कैसे बताए कि उसका निकाह हुआ है, कि अचानक उसे ताई के चीखने की आवाज आई। वो तेजी से बाहर की तरफ दौड़ी। डीमू जमीन पर गिरा बुरी तरह तड़प रहा था।
मुंह से झाग निकल रही थी, हाथ पांव मुड़ रहे थे। वदिया की दबी दबी चीख निकल गई। दीमू होश कर पुत्र। ताई के हाथ पांव फूले हुए थे, वो उसे संभालने में लगी थी। ताया जी भी आ गए, वो भी दीमू को थाम कर वहीं बैठ गए, मगर बूढ़ी हड्डियों की निस्बत वो जवान मर्द ज्यादा ताकतवर था। वदिया दरवाजे की ओर से देख रही थी, उसका जिस्म हौले हौले लरजने लगा। क्या मुसीबत, क्या हुआ है? असगर गुस्से से दाखिल हुआ। एक तो गर्मी, ऊपर से लोड शेडिंग ने मुसीबत डाली है। इतनी मुश्किल से आंख लगी थी, फिर ये मुसीबत। वो दीमू को जमीन पर पड़ा देखकर बोला। ताई जी उसके हाथ सहला रही थी, अब वो पहले से बेहतर था। उन्होंने दरवाजे की ओट में खड़े वदिया को देखा। खौफ से वो कांप रही थी। कल रात वाले वाकये से बहुत डर गई थी वो। सहन में निकल आई, वहां छोटी ताई की सबसे छोटी बहू बाल सुखा रही थी। वो छांव में बिछी चारपाई पर बैठ गई। वो अपनी सोचों में गर्क थी कि उसे चारपाई पर एक और वजूद महसूस हुआ। उसने सर उठाया तो शैला बैठी उसे देख रही थी। परेशान हो? उसने वदिया के उतरे चेहरे को देखकर पूछा। नहीं तो, उसने नफी में सर हिलाया। अच्छा, उसने अच्छा तंज किया। फिर उदास हो गई होगी। हफ्ता हो गया होगा तुम्हें यहाँ आए हुए, है ना? जी, आज हो गया है शायद। वो मुस्कुराई। भाभी एक बात पूछूं? वो झिझकते हुए बोली। हाँ हाँ करो। शैला मुतजस्सिस हो गई। दीमू बीमार है क्या? उसने धीमी आवाज में पूछा। हाय दीमू, वो आह भरकर बोली। ऐसा गभरू जवान है, मगर बेचारे को क्या हुआ है उसे? वदिया ने बात काटी। वो भी मुतजस्सिस हो गई थी। उस पर जिन है कोई, वो राजदराना लहजे में उसके करीब होकर बोली। जब उस पर जिन आता है ना तो मुंह से झाग निकलने लगता है, हाथ पांव मुड़ जाते हैं, कभी कभी अजीब आवाजें निकालने लगता है। तुमने उसे ऐसे देखा है क्या? वो उसके कान में बोली। जवाबन उसने सर इस बात में हिलाया। वो घबरा गई। वैसे भी वो थोड़ा साई है, मस्त रहता है अपने आप में। ना मुंह से कुछ बोलता है और ना कोई काम धंधा, बस डेरे पर पड़ा रहता है। कभी कभार ही घर आता है। वो उसे तफसील बताकर बोली। अच्छा, बदिया के मुंह से बस यही निकला। चाची, तुझे दादी बुला रही है, बच्चे ने आकर कहा। अच्छा चल आ रही हूँ, वो बच्चे को दौड़ाकर बोली। तुम दूर ही रहना उससे, वो हिदायत देकर चली गई। इधर वदिया एक और उलझन में फंस गई। अब्बू, आज मैं फिर जाऊंगा उधर, और फिर वहीं से फैसलाबाद निकल जाऊंगा। आली नाश्ते की मेज पर बोला। हूँ ठीक है, कोशिश करना कि वदिया से लाजमन मुलाकात हो जाए। अगर हो सके तो उसे वहां से लेते ही आना। हूँ, कोशिश तो मेरी भी यही होगी। और एक दफा वहां के पुलिस स्टेशन भी जाऊंगा। असगर चौधरी है ना उसका नाम? वो कंफर्म करने को बोला। हाँ यही है नाम। वकार साहब ने इस बात में सर हिलाया। जबकि रुकैया बेगम हमन्नक बनी बातें सुन रही थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आली वहां किसी असगर चौधरी के लिए जा रहा है, मगर उनका मूड जरूर खराब हो गया था वदिया के जिक्र पर। मगर मसलहतन खामोश रही थी। जानती थी कि शौहर और बेटा दोनों ही वदिया के नाम पर कुछ सुनने को तैयार नहीं है। मगर एक चीज जो उन्हें परेशान कर रही थी वो उन दोनों की फिक्र थी। आखिर को वो अपने ददियाल ही तो गई है, कौन सा मुहाज जंग पर गई है, वो सोच रही थी। आली गांव पहुंचा तो गाड़ी गर्म हो गई। वो गाड़ी वहीं छोड़कर पैदल ही हवेली की तरफ बढ़ गया। वो अपने आम कपड़ों में था। उसने बेल बजाई। जी कौन है आप? और किससे मिलना है आपको? बच्चे ने दरवाजा खोला। मुझे वदिया से मिलना है, आप उन्हें बुला दें। वो मुस्कुराया। वद्दी बाजी से? वो तस्दीक करने के लिए बोला। जी उनसे ही। उसने उसके बाल बिखेर कर कहा। ठीक है, मैं जाकर कहता हूँ अंदर। वो अंदर की तरफ दौड़ गया। दरवाजा खुला था, इसीलिए वो अंदर दाखिल हो गया। अभी वो सहन तक ही पहुंचा था, राहदारी उबूर करके एक मर्द उसी की तरफ बढ़ा। जी कौन है आप, और अंदर क्यों चले आए? अक्खड़ लहजे में पूछा गया। मैं आली हूँ, वदिया से मिलने आया हूँ, उसका कजिन हूँ। दानिस्ता उसने अपना और उसका हकीकी रिश्ता नहीं बताया। न जाने उसने यहाँ बताया भी होगा कि नहीं। सामने खड़े मर्द ने सर से पांव तक उसे देखा। वरिया किचन में खाना बना रही थी। उसे लगा जैसे आली आया हो। इस हफ्ते जितना उसने आली के बारे में सोचा था, उतना तो उसने खुद अपने बारे में सोचा नहीं था। मोहब्बत तो कभी भी हो सकती है, फिर चाहे वो शख्स हिटलर ही क्यों ना हो। वो मुस्कुरा दी और चम्मच चलाने लगी। उसने अपने आप को कामों में मसरूफ करना चाहा, मगर छठी हिस्स कह रही थी उसकी सोचों का महवर उसके आस पास ही है, वो तो घर पर नहीं है। साफ झूठ बोला गया। कहाँ है वो? अब उसे तशवीश हुई। कहीं गई हुई है वो अम्मा के साथ। लहजे में बला की सफाकी थी। आली खामोशी से उसका जायजा लेने लगा। साफ पता चल रहा था कि वो नहीं चाहता कि आली उससे मिले। ये शख्स इतना सीधा नहीं है जितना बन रहा है। आली ने कयास आराई की। वैसे आप कौन हैं? आली ने उसका तारुफ चाहा। असगर चौधरी कहते हैं मुझे, गर्दन अकड़ा कर कहा गया। ओह, आली की बात समझ में आ गई। मैं उसका इंतजार कर लेता हूँ। उसने बड़ी सफाई से पत्ता फेंका। उसकी ज़रूरत नहीं है, जाने कब आए। वो आएगी तो बता दूंगा। साफ इनकार था। आखिर ये मुझे मिलने क्यों नहीं देना चाहता? उसकी छठी इस कह रही थी यकीनन कुछ गड़बड़ है। असगर हाथ पीछे बांधे उसके जाने का मुंतजिर था। बादल नख्वास्ता आली पलट आया, मगर अब उसका इरादा असगर चौधरी के मुतालिक इंक्वायरी कराने का था। एक दफा देखने में क्या हर्ज है, वदिया ने खुद से कहा और दौड़ कर बाहर आई। वहां असगर अकेला खड़ा था। आली ने बस दरवाजा अबूर किया था।
کوئی آیا تھا کیا؟ ودیا نے پوچھا۔ نہیں، کوئی نہیں آیا تھا، اور تم لڑکی درست سہیلیہ میں رہا کرو، کاٹدار نظروں سے کہا گیا۔ ودیا نے جلدی سے دوپٹہ درست کیا، وہ شرمندہ ہو گئی۔ اسے اصغر سے بہت ڈر لگتا تھا۔ وہاں سے آنے کے بعد وہ کافی پریشان تھا۔ اصغر چودھری کی شہرت کچھ اچھی نہیں تھی، اس کے نام پر کافی مقدمے درج تھے، مگر اصل رسوخ کی وجہ سے اور پیسے والے ہونے کی وجہ سے کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ وہ مسلسل تانے بانے بن رہا تھا۔ وہ 2 دفعہ ودیا سے ملنے گیا تھا، اور دونوں دفعہ ہی اسے ملنے نہیں دیا گیا تھا۔ نہ جانے وہ وہاں کیسی ہوگی، اوروں کا رویہ اس کے ساتھ ٹھیک ہوگا بھی کہ نہیں، وہ مسلسل سوچ رہا تھا۔ اس نے ابو کو فون کر کے صورتحال سے آگاہ کیا اور وکیل صاحب کا نمبر مانگ لیا۔ پھر وکیل صاحب سے تفصیل سے بات کی اور اصغر کے رویے کا بھی ذکر کیا۔ دیکھو علی، میں نے پہلے ہی آگاہ کیا تھا، اصغر ویسے بھی ہٹ درم ہے، سارے کا سارا ہولڈ بھی اس کا ہی ہے، اور اس کے شہرت کا تمہیں پتہ چل گیا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسے ودیا سے بیر ہے، کیونکہ جائیداد کا ایک اہم حصہ اس کے نام ہے، اور وہ اسے حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ تم سمجھ رہے ہو، کسی بھی حد تک؟ انہوں نے اسے واضح طور پر آگاہ کیا۔ جی وکیل صاحب، آپ کا شکریہ، بہت بہت، میں کرتا ہوں کچھ۔ علی نے فون بند کیا اور نئے سرے سے حالات پر غور کرنے لگا۔ کب تک رکھنا ہے اس میم صاحبہ کو یہاں؟ چھیدو نے روٹی چنگیر پر رکھتے ہوئے کہا۔ اب یہ ساری حیاتی یہی رہے گی۔ وہ بولا، کیا مطلب ہے؟ چھیدو حیران ہوئی۔ میں اس کے اور دیمے کی شادی کرا رہا ہوں 1-2 دنوں میں۔ وہ روٹی کھاتے ہوئے بولا، مگر پتر وہ مان جائے گی؟ میرا مطلب ہے کہ اسے دیمو کے بارے میں پتہ چل گیا ہے، تائی جی نے بے بسی سے کہا۔ اسے ماننا ہی ہوگا اماں، تم کس لیے ہو؟ اسے مناؤ، وہ جھاڑ کر بولا۔ ودیا دروازے کی اوٹ میں کھڑی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ اپنا نچلا ہونٹ کاٹ رہی تھی اور اب اس میں سے خون بہہ نکلا تھا۔ پتر، میں نے ہلکے پھلکے انداز میں پوچھا تھا اسے، مگر اس نے عجیب ہی بات کی۔ تائی جان اپنی اور اس کی آخری ہونے والی بات بتانے لگی۔ کیا کہا اس نے؟ تیکھے ابرو سے پوچھا۔ وہ کہندی پئی سی کی عمدہ نکاح ہو چکی ہے۔ انہوں نے ایسے بتایا جیسے غلطی ان کی ہی ہو۔ جھوٹ بول رہی ہوگی، وہ چالاک بننے کی کوشش کر رہی ہوگی، مگر وہ جانتی نہیں ہے کہ اصغر چودھری نے بڑے بڑوں کی چالاکی نکالی ہے۔ پھر وہ ہے کیا چڑیا؟ وہ ہنکار بھر کر بولا۔ اسے مناؤ سارے مل کے، وہ پلیٹ کو ٹھوکر مار کر بولا۔ اگر وہ نہ مانی تو کیا کرے گا تو؟ چھیدو نے روٹی واپس رکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں مانی تو گاؤں میں ہاتھ سے بڑے ہوئے ہیں، خاص کر جوان جہاں لڑکیوں کے ساتھ، کبھی کسی پر جن آ جاتا ہے اور کبھی کوئی کنویں میں گر کر مر جاتی ہے۔ وہ غصے سے کہہ کر نکل گیا۔ پیچھے چھیدو اور تائی منہ کھولے بیٹھی تھی، جبکہ سوئے ہوئے بچے شور سن کر اٹھ بیٹھے تھے۔ آخری بات سن کر ودیا کا رنگ اڑ گیا۔ اسے اس حد تک اصغر کے جانے کی امید نہیں تھی۔ وہ مرے ہوئے قدموں سے واپس پلٹ آئی، بستر پر ڈہ گئی۔ وہ زور زور سے رونے لگی۔ سب نے مجھے یہ مشق ستم کیوں بنا رکھا ہے؟ جسے دیکھو میری زندگی اپنی مرضی سے چلانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ پہلے مامی، پھر علی، اور اب یہ اصغر بھائی۔ یا اللہ، میری آزمائشیں کب ختم ہوں گی؟ میرے مالک، مجھے کب نجات ملے گی؟ اور علی، انہوں نے ایک دفعہ مڑ کر بھی میری خبر نہیں لی۔ وہ تو میرے شوہر ہیں نا؟ مگر نہیں، انہوں نے بھی سوچا ہوگا مصیبت خود ٹل گئی۔ مامی، شمائلہ بھابی، نائلہ اور خالہ بھی پرسکون ہو گئے ہوں گے کہ منحوسیت ختم ہوئی۔ وہ سب کو یاد کر کے رو رہی تھی۔ یا اللہ، میری مدد کر، تو میرے مالک مجھ پر رحم کر۔ اس نے صدقے دل سے دعا کی۔ یہ تو جاگتی پہ یہ پنجابی مجھے نہیں آتی، خیر۔ تائی کی کمزور آواز آئی۔ اس نے جلدی سے اپنی آنکھیں رگڑی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ انہیں کچھ پتہ چلے کہ اس نے سب سن لیا ہے۔ جی تائی، جاگ رہی ہوں۔ وہ اٹھ بیٹھی۔ میں تیرے نال گل کیتی سی نا، تیرے ویاہ دی، انہوں نے پیار سے کہا۔ تو من جا رانی، تو نہیں جاندی اس اصغر نو، بڑا ضدی ہے وہ اسے پچکار کر بولی۔ مگر تائی، میرا نکاح ہو چکا ہے علی کے ساتھ، میں کس طرح شادی کر سکتی ہوں؟ وہ ان کا ہاتھ تھام کر بولی۔ اسے ان پر ترس آ رہا تھا، وہ کس قدر بے بس عورت تھیں اپنے بیٹوں کے ہاتھوں۔ میرا دیمو بڑا چنگا ہے، بس کدی کدی مرگی کے دورے پہندے ہیں۔ انہوں نے اس کے انکار اور جھوٹ کی وجہ سے دیمو کی حالت گردانی۔ تائی، میں جھوٹ نہیں کہہ رہی، میرا نکاح ہوئے 5 مہینے ہونے والے ہیں۔ وہ اب بھی ثابت قدم بنی تھی۔ وہ خاموشی سے اٹھ گئیں اور وہ انہیں جاتا دیکھتی رہی۔ ودیا محسوس کر رہی تھی جیسے اس کی نگرانی کی جا رہی ہو، اس پر نظر رکھی جا رہی ہو، ہر وقت چھیدو یا پھر کوئی بچہ اس کے آس پاس ہوتا۔ اسے سمجھنے میں زیادہ تردد نہیں کرنا پڑا کہ یہ سب کس کے کہنے پر ہو رہا ہے۔ دیمو کو اس نے اس کے بعد نہیں دیکھا تھا، شاید ڈیرے پہ تھا۔ وہ چارپائی پہ بیٹھی کہ اچانک اصغر آ گیا۔ چھیدو، کسی لے آ ٹھنڈی سی لسی، چھیدو لسی لے آ ٹھنڈی سی۔ اس نے چھیدو کو آواز لگائی۔ ودیا اس کو دیکھ کر کچھ اور سمٹ گئی۔ تو تیاری رکھ، تیرا اور دیمو کا کل مغرب کے بعد نکاح ہے، اور زیادہ ہوشیاری دکھانے کی کوشش نہ کرنا ورنہ جان سے جائے گی، سمجھی؟ وہ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولا۔
छेदू लस्सी का जग ले आई। वो लस्सी पीकर बोला, सारी हयाती उस दादे की खिदमतें हमने की, और जब फल खाने की बारी आई तो सबसे मीठा फल वो तुझे दे गया। वदिया नासमझी से उसे देखती रही। वो किस फल की बात कर रहा है? उस बुड्ढे को भी पता नहीं तू कहाँ से इतने सालों बाद याद आ गई। सबसे कीमती जमीन वो तेरे नाम कर गया है। आज वो लाखों की है, कल वो करोड़ों की हो जाएगी। वो हुनकारा। वदिया को सारी बात समझ में आ गई। तो ये सब उस जमीन के लिए किया जा रहा था जिससे अब तक वो लाइल में थी। याद रखें, कल तेरा निकाह है, तैयार रहें। वो उसे तनबी करके चला गया। छेदू भी जल्दी चली गई, जबकि वो वहीं बेबसी से आंसू बहाती रही। ऐ खुदा, तू सब जानता है ना, मेरी मदद कर मेरे मौला। उसने एक बार फिर खुदा को याद किया। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। रो रो कर उसका सर भारी हो गया था। इस तरह हाथ पर हाथ धर कर बैठने से क्या होगा वदिया? उठ, कोई हल निकाल। इस तरह निकाह पर निकाह कैसे हो सकता है? मैं ये गुनाह नहीं कर सकती। वो अपने आप को हिम्मत दे रही थी, फिर एक अज़्म के साथ उठी। रात का न जाने कौन-सा पहर था, फिज़ा में सिर्फ झींगुरों की तेज़ आवाज़ गूंज रही थी। उसने साथ लेटी ताई को देखा, वो सो रही थी। वो दबे कदमों से निकली। एक दिल कहा कि भाग ले, वो उसी इरादे से बाहर की तरफ दौड़ी। गेट से बाहर असगर ने अपने बंदे खड़े किए हुए थे और पालतू कुत्ते उसने सहन में छोड़ रखे थे। उसने हालात का जायज़ा लिया, ज़रा-सा सर बाहर निकाला और देखा पूरे सहन में सिर्फ एक बल्ब रोशन था, जिसकी रोशनी नाकाफ़ी थी। आंसुओं से आंखें धुंधला गईं। ठोकर से कोई बर्तन गिर पड़ा, साथ ही फिज़ा में कुत्तों की आवाज़ें गूंज गईं। वो उल्टे कदमों अंदर भागी। क्या हुआ है? असगर नींद में बाहर आया। इधर कोई आया है क्या? बाहर से आवाज़ सुनकर उसके बंदे भी आ गए थे। उसने उन्हीं से पूछा। नहीं, इधर तो कोई नहीं है। उन्होंने लाइल्मी का इज़हार किया। ठीक है, ध्यान रहे। किसी परिंदे को भी मेरी इजाज़त के बगैर नहीं जाने देना। वो हिदायत देकर अंदर आ गया। अपने कमरे की तरफ जाते उसके कदम रुके। वो चंद लम्हे खड़ा जायज़ा लेता रहा। फिर वो उस कमरे की तरफ बढ़ा जहाँ वदिया थी। वदिया सांस थामे लेटी थी। असगर ने दरवाज़ा खोला और अंदर आया। तसल्ली कर लेने के बाद वो अपनी जगह पर है, बाहर निकल गया। वदिया ने रुका हुआ सांस लिया। कुछ देर तक वो लेटी रही, फिर उठकर उस कमरे में गई जहाँ फ़ोन होता है। इत्मीनान कर लेने के बाद कि वहाँ कोई नहीं है, उसने फ़ोन की तरफ हाथ बढ़ाया। किसे फ़ोन करूँ मैं? घर में क्या किया तो सब परेशान हो जाएँगे। फिर अचानक आली का ख़्याल आया। हाँ, आली को करती हूँ। उसने रिसीवर उठाया। डर के मारे उसके हाथ काँप रहे थे। बार-बार उसकी निगाहें दरवाज़े की तरफ उठ रही थीं कि कोई आ ना जाए। घबराहट की वजह से उसे आली का नंबर भी ठीक से याद नहीं आ रहा था। 2-3 दफ़ा उसने नंबर मिलाया, फिर खुद ही काट दिया। अल्लाह, मैं क्या करूँ? मुझे ठीक से नंबर भी याद नहीं आ रहा। उसने बेबसी से कहा। फिर रिसीवर हाथ में ही पकड़कर उसने खुद को कंपोज़ किया, लंबी साँस ली, फिर अपनी तमाम हिम्मत जमा करके उसने ज़हन पर ज़ोर डाला और अल्लाह का नाम लेकर नंबर मिलाया। मोबाइल की मुसलसल बेल से उसकी आँख खुल गई। उसने घड़ी को देखा। रात के 2 बज रहे थे। खुदा खैर करे, इस वक़्त किसका फ़ोन है? उसने यस का बटन पुश किया। हेलो? भारी सी आवाज़ उसकी समातों पर फुआर बनकर गिरी। हेलो, हेलो, वो मुसलसल बोल रहा था। आली, उसने बमुश्किल तमाम हिम्मत जमा करके कहा। वदिया, तुम ही हो ना? आली को अजीब-सी खुशी हुई। वो न जाने कितने दिनों बाद उसकी आवाज़ सुन रहा था। तुमने इस वक़्त फ़ोन किया, सब ठीक है ना? वो उसके बेवक़्त फ़ोन करने पर परेशान हुआ। आली, आप आ जाएँ, मुझे ले जाएँ यहाँ से प्लीज़। रोते हुए उसने बात की। वदिया, तुम ठीक हो ना? उसने बेताबी से पूछा। आली, आप आ जाएँ प्लीज़, उसने इल्तिजा की। ये लोग मेरा हिचकियों की वजह से उससे बोला नहीं जा रहा था। अचानक दरवाजे की कुंडी बजी तो वदिया की जान हलक में आ गई। उसने खड़ाक से फ़ोन बंद कर दिया और गर्दन घुमाकर देखा। वहाँ ताई खड़ी थी। हेलो, हेलो वदिया, वो ज़ोर से बोलने लगा मगर दूसरी तरफ राबिता मुनक़ता हो गया था। ओह गॉड! वो यकीनन किसी बड़ी मुसीबत में फँस गई है। मुझे वहाँ जाना होगा, वो बिस्तर से उठते हुए बोला। नींद तो उसकी हवा हो गई थी, ऊपर से वदिया की फ़िक्र, जो अब उसके धड़कनों में शामिल हो गई थी। वो उसे कैसे किसी तकलीफ में बर्दाश्त कर सकता था। वदिया के वहाँ जाने से उसे एहसास हुआ कि वो उसे कितनी शिद्दत से चाहने लगा है। पहले उसे लगा कि शायद ये वक्ती जज़्बा हो, मगर वो बात नहीं करती थी, मगर उसे देखकर इत्मीनान रहता था। मगर अब उसे इतने दिनों से देखा भी नहीं था, तो उसे सुकून नहीं मिल रहा था। वो उसे शिद्दत से याद आती थी। उसकी रोई-रोई आँखें, उसकी सादगी, उसका कतराना, वो कितना मिस कर रहा था। जब से वो असगर से मिलकर आया था, तब से उसने काफ़ी मालूमात कराई थी। उसके पास काफ़ी सबूत इकट्ठे हो गए थे उसके खिलाफ। उसने वदिया से मिलने नहीं दिया था, इसलिए उसको अंदाज़ा हो गया था कि वहाँ वदिया के साथ हालात ठीक नहीं हैं, मगर असगर के मामले की वजह से वो काफ़ी बिज़ी रहा था। उसके काफ़ी केसेस चल रहे थे, मगर वो एक शातिर इंसान था। न जाने कौन से पहर उसकी आँखें सर दर्द के बायस खुल गई थीं। दरवाज़े के बाहर राहदारी में छेदू चहक-चहक कर उसके निकाह के बारे में नसीमों को बता रही थी।
ہائے اللہ، یہ مان گئی اس دل سے نکاح پہ؟ نسیمو حیران ہو کر بولی، ہوں، یہ کیسے نہ مانتی؟ اس کے تو فرشتوں کو بھی ماننا تھا، آخر کو اصغر نے فیصلہ کیا تھا، اور کس کی مجال جو اس کے سامنے زور سے سانس بھی لے؟ اس نے اکڑ سے کہا، جبکہ نسیمو نے افسوس سے بستر پر پڑی ودیا کو دیکھا اور باقیوں کو بتانے چل دی۔ آخر کو اس کے گھر کے پتر کی شادی تھی۔ ودیا کو وقت کا اندازہ نہیں تھا، مگر کھڑکی سے اندر آتی سورج کی تیز روشنی اسے بتا رہی تھی کہ دن چڑھے بہت زیادہ دیر ہو گئی ہے۔ کیا میری زندگی میں بھی بہت دیر ہو گئی ہے؟ ایک بار پھر وہ بے بسی سے سوچنے لگی، مجھے تو لگتا ہے شاید یہ میری زندگی کی آخری صبح ہے۔ دل تو مردہ ہو ہی گیا تھا، اس جسم کا کیا روح سے ناتا ہی ٹوٹنے کی دیر ہے، یہ بھی مردہ ہو جائے گا۔ نا امیدی اس کے اندر سمانے لگی تھی، مگر پاک پروردگار نے اسے آج ایک نئی زندگی دینے کا فیصلہ کیا ہوا تھا۔ وہ انجان تھی، وہ شاید بھول رہی تھی کہ خدا کے کام مصلحت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتے، اور حالات سے نا امیدی رکھنا کفر ہے۔ نی چھیدو، اصغر کتھے ہے؟ تائی نے چھیدو کو پکارا، جو بڑی محنت سے اپنا کام والا بھاری سوٹ شام کے لیے استری کر رہی تھی۔ وہ تے ڈیرے تے گیا ہے، کہہ رہا تھا کہ کوئی کام ہے، ریمو کو بھی وہاں سے ہی تیار کرا کر لے آئے گا۔ اس نے تفصیل بتائی۔ تو ودیا دے کپڑے استری کر دیتے، انہوں نے صندوق سے کچھ نکالتے ہوئے کہا۔ ہاں، کہہ دیتا سی، رانی نو میرا لہنگا پہنا دیں گے۔ وہ دوپٹہ ہینگر میں ڈالتے ہوئے بولی، لے بلا تو اصغر کو کہہ دیتی کہ بچی کے لیے کم سے کم ایک نیا جوڑا ہی لے آندا۔ اچھا، اتنا بڑا دن ہے اس کے لیے۔ وہ افسوس سے بولی، کوئی گل نہیں اماں، بعد وچوں لے دواں گے۔ وہ اب قمیض پر استری کر رہی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ تھیلی کھول کر بولی۔ ودیا کے پورے جسم میں درد کی لہریں اٹھ رہی تھی، سر درد سے بھاری ہو رہا تھا، اس میں اٹھنے کی ہمت نہیں تھی، وہ چت لیٹی تھی۔ ودی باجی اٹھیں، چھیدو کا سب سے چھوٹا بیٹا اسے بازو سے پکڑ کر ہلا رہا تھا۔ اس نے بمشکل آنکھیں کھولی۔ اٹھیں، آپ سے کوئی ملنے آیا ہے، میں نے اسے بڑے کمرے میں بٹھایا ہے، جائیں مل لیں۔ وہ کہہ کر نکل گیا۔ وہ بستر سے بڑی مشکلوں سے اٹھی تو سر چکرا گیا، بروقت اگر وہ بستر کا سہارا نہ لیتی تو گر جاتی۔ وہ بمشکل دیواروں کا سہارا لے کر بڑی کمرے میں داخل ہوئی تو پولیس کے یونیفارم میں وہ اس کی طرف پشت کر کے کھڑا تھا۔ ودیا کے اندر زندگی کی لہر دوڑ گئی۔ آلی، اس کی کمزور مگر خوشی میں ڈوبی ہوئی آواز آئی۔ شاید زندگی میں پہلی بار اسے آلی کو دیکھ کر بے انتہا خوشی ہو رہی تھی۔ آلی اس کی طرف مڑا، اسے ودیا کو دیکھ کر دھچکا لگا۔ وہ پہلے بھی بہت صحت مند نہیں تھی، مگر اب وہ تو بہت کمزور لگ رہی تھی، چہرہ لال ہو رہا تھا اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ ودیا، تم ٹھیک ہو؟ وہ فکر مندی سے آگے بڑھا۔ ودیا چند قدم آگے بڑھی اور اس کے فراق سینے میں سما گئی۔ آلی، آپ آ گئے؟ وہ آنکھیں بند کیے اس کے مضبوط سینے سے لگی تھی، جیسے وہ بہت محفوظ ہاتھوں میں آ گئی ہو۔ آلی کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس طرح گرم جوشی سے ملے گی۔ وہ اس افتاد پر حیران بھی تھا اور خوش بھی۔ اس نے اسے اپنی مضبوط باہوں میں بھر لیا۔ ودیا کے جسم کی حرارت جب آلی کے جسم سے ٹکرائی تو اسے احساس ہوا کہ وہ دہک رہی ہے۔ اس نے آہستگی سے اسے خود سے جدا کیا، اس کے ہاتھ تھامے، اسے لگا کہ اس نے جلتے ہوئے کوئلے پکڑ لیے ہوں۔ ودیا، تمہیں بہت تیز بخار ہے، وہ اسے صوفے پر بٹھاتا ہوا بولا۔ آپ مجھے یہاں سے لے جائیں آلی، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ آنسو پلکوں کے باڑ توڑ کر نکلے۔ آلی کو اس کے آنسوؤں سے تکلیف محسوس ہوئی تو ہاتھ خود بخود اس کے آنسو پوچھنے لگے۔ میں تمہیں لینے ہی آیا ہوں، وہ مسکرا کر بولا۔ کون ہو تم؟ چھیدو نے اندر آ کر ان دونوں کو اتنے قریب بیٹھے دیکھا تو اس اجنبی سے بولی جو اس کے آنسو صاف کر رہا تھا۔ السلام علیکم، آلی آداب نبھاتے ہوئے بولا۔ وعلیکم السلام، آواز کافی تیکھی تھی۔ کون ہو تم اور ہماری بہو کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ وہ اس کے یونیفارم سے تھوڑا متاثر ہوئی، اسی وجہ سے آواز نارمل ہوئی۔ بہو؟ آلی کو حیرانی ہوئی، اس نے ایک نظر ودیا پر ڈالی جو دونوں کو ہی دیکھ رہی تھی اور اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ ہاں بھئی، آج اس کا اور میرے دیور کا نکاح ہے، وہ بڑے فخر سے بتا کر بولی۔ آلی ابھی اسی بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ خطرناک تیوروں کے ساتھ اصغر داخل ہوا۔ وہ باہر پولیس کی نفری دیکھ چکا تھا، آج آلی اپنے پروٹوکول کے ساتھ آیا تھا۔ اسے حالات کی نزاکت کا احساس ودیا کے فون سے ہو چکا تھا، اسی وجہ سے وہ پوری تیاری کر کے آیا تھا۔ تم پھر آ گئے ہو؟ آلی کے یونیفارم کا خاطر خواہ اثر ہو رہا تھا، تیور تھوڑے دھیمے ہوئے۔ جی، میں پورے حق سے آیا ہوں، آلی تحمل سے بولا۔ پتر کون آیا ہے؟ رحیم بتا رہا تھا کہ کوئی پولیس والا آیا ہے۔ تائی جی بھی پولیس والے کا سن کر پریشان ہو گئے۔ یہ اس کا کزن آیا ہے ابا جی، اصغر ہنکار بھر کر بولا۔ السلام علیکم انکل، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ وہ آگے بڑھ کر ان سے ادب سے ملا اور سر پیار کے لیے جھکا دیا۔ جیتے رہو پتر، تم ودیا کے مامے کے پتر ہو نا؟ وہ پیار دیتے ہوئے بولے۔ جی، میں وہی ہوں۔ وہ مسکرایا۔ لگتا ہے ودیا نے کسی کو بھی نکاح کے بارے میں نہیں بتایا، اس نے سوچا۔
और एक नाराज सी नजर वदिया पर डाली जो बड़ी बेचैनी से हाथ मरोड़ रही थी। दोनों की नजरें मिली तो वो शर्मिंदा हो गई। अंकल, आज मैं वदिया को लेने आया हूँ, वो बड़े मुहज्जिब अंदाज में बोला। उसने असगर को यकसर नजरअंदाज कर दिया, मगर पुत्र ओ। उन्होंने परेशानी से असगर को देखा। ये कहीं नहीं जाएगी, असगर ने आगे आकर कहा। क्यों नहीं जाएगी, मैं तो लेकर जाऊंगा। आली भी उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला। आज इसका निकाह है मेरे भाई के साथ। वो अंगारे बरसती आंखों से बोला, इसका निकाह नहीं हो सकता। और मैं इससे पूरे हक से लेकर जाऊंगा। वो भी उसी अंदाज में बोला, चलो उठो वदिया। उसने मुड़कर वदिया से कहा। वदिया तो जैसे उसी का इंतजार कर रही थी, फौरन उठकर आली के पीछे आ गई। असगर ने एक घूरती गुस्सैली निगाह उस पर डाली तो उसने जल्दी से आली का बाजू थाम लिया। इसका निकाह क्यों नहीं हो सकता, और कौन से हक की बात कर रहे हो तुम? वो आली से फिर मुखातिब हुआ। निकाह इसलिए नहीं हो सकता कि इसका निकाह हुआ है, और हक मेरा ये है कि बीवी है ये मेरी। उसने धमाका किया। और इसे मेरे साथ चलने से कोई नहीं रोक सकता। उसने सबको देखकर कहा। वहां पर सबको सांप सूंघ गया। क्या सबूत है कि ये तेरी बीवी है? सबसे बड़ा सबूत यह है कि इसने हक से मेरी पनाह ली है। उसने एक नजर अपने पीछे छुपी वदिया को देखकर कहा। और ज्यादा सबूत चाहिए तो मैं निकाहनामा मंगवा लेता हूँ। वो इत्मीनान से खड़ा असगर की हालत से लुत्फानंदोज हो रहा था। तुम शायद मुझे ठीक से जानते नहीं हो, तुम्हें पता नहीं है तुम किससे पंगा ले रहे हो। वो धमकी देकर बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ ऐसे ही आया हूँ? तुम्हारे बारे में शायद जितना मैं जान गया हूँ उतना तो तुम्हें खुद भी इल्म नहीं होगा। तुम्हारे जितने केसेस बंद हुए हैं ना, मैं उन्हें रीओपन करवा सकता हूँ। और इस इलाके के पुलिस स्टेशन को जो तुमने अपना ससुराल समझ रहे हो, उसी को तुम्हारे लिए कब्रिस्तान बनाने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। वो उसी की धमकी को वापस करते हुए बोला। असगर झाग की तरह बैठ गया। अब मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। हिम्मत है तो रोक कर दिखाओ। वो वदिया का हाथ थाम कर बोला। और हाँ, अगर मेरे जाने के बाद कुछ किया तो जितना बताया है ना, उससे भी ज्यादा बुरे वक्त के लिए तैयार रहना। वैसे मुझे एसपी आली वकार कहते हैं। वो उसे तनबीह करते हुए बोला। अच्छा अंकल, चलते हैं। वो ताया जी के सामने खड़े होकर बोला। वो हैवनक बने देख रहे थे। वदिया से चला नहीं जा रहा था। आली ने उसे कंधों से थाम लिया और उसे देखकर मुस्कुरा दिया। वदिया झेप गई। वो सहन में आई तो ताई से सामना हो गया। जा रही है पुत्र? वो वदिया को देखकर बोली। जी ताई जी। वो उनके गले लग गई। ये वाहिद हस्ती थी जिसने उसे ममता जैसी मोहब्बत दी थी। बेशक वो अपनी औलाद के हाथों मजबूर हो गई थी। जाइए, सदा खुश रहो। उन्होंने बढ़कर उसका माथा चूम लिया। तुम लोग जीप में आओ, मैं गाड़ी में जाऊंगा। उसने अपने मातहतों को हुक्म दिया। गाड़ी वो खुद चलाने वाला था। उसने वदिया को बिठाया और दूसरी तरफ ड्राइविंग सीट संभाल ली। वदिया ने एक अलविदाई नजर हवेली पर डाली और फिर गाड़ी के शीशे चढ़ा दिए। उसे यहाँ से भी ज्यादा कुछ खुशगवार यादें नहीं मिली थीं। असगर का गुस्से से बुरा हाल था। उसने कुर्सी को ठोकर मारी और निकल गया। अल्लाह खैर करे अब छेदू। वो उसके तेवरों से घबरा कर बोली। वदिया ने पुरसुकून होकर आंखें बंद कर लीं। आंखों की जलन थोड़ी कम हो गई थी। आली ने एक नजर उस पर डाली। अब वो पुरसुकून लग रही थी। वदिया को अपने नजदीक इस तरह पाकर वो भी खुश और मुतमईन हो गया। जब वो लाहौर दाखिल हुआ तो मगरिब हो गई थी। आज फिर जुलूस निकले हुए थे, महंगाई के खिलाफ, लोड शेडिंग के खिलाफ। लोग अपना गमो गुस्सा टायर जलाकर और चीजें तोड़ फोड़ कर निकाल रहे थे। हर बड़ी शाहराह का यही हाल था। उसने अपने मातहतों से कहा कि वो अभी अपने घरों को चले जाएं, और दोबारा गाड़ी में आ गया। वो जिस तरफ जा रहा था वहां तोड़ फोड़ और धुएं के स्याह बादल थे। जो रास्ता 1 घंटे का था उसने वो 5 घंटों में तय किया, मगर एक बहुत तवील पुरसुकून रास्ते से होता हुआ घर पहुंचा। उसने सहारा देकर वदिया को बाहर निकाला और अंदर ले गया। अरे वदिया और आली, तुम लोग आ गए। वली ऊपर जाता हुआ उन दोनों को देखकर बोला। अस्सलाम वालेकुम वली भाई। वदिया ने बमुश्किल सलाम किया। उसका सर चकरा रहा था, कमजोरी के बायस उसका खड़ा होना मुहाल लग रहा था। टांगे उसका बोझ उठाने से इनकारी हो रही थी। वालेकुम अस्सलाम, गुड टू सी यू। वो मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ रखकर बोला। भाई सब कहाँ हैं? वो उसे सहारा देकर अंदर लाया और खामोशी का राज देखकर पूछने लगा। अम्मी की तबीयत नासाज है, वो जल्द सो गई, और अबू भी शायद लेट गए हैं। शुमाइला आज अपनी अम्मी की तरफ गई है। उसने तफसील बताई। आली यार, तुम इसे ऊपर ले जाओ, मुझे इसकी हालत ठीक नहीं लग रही है। वली उसका सफेद पड़ता रंग देखकर तशवीश से बोला। जी भाई, इसे बहुत तेज बुखार है। आली उसे सहारा देकर आगे बढ़ने लगा। उसी वक्त वो कमजोरी के बायस ढह गई। वदिया, वदिया आंखें खोलो। दोनों एकदम परेशान हो गए। मुझे लगता है कमजोरी के बायस बेहोश हो गई है। यार तुम इसे ऊपर लेकर जाओ जल्दी। वली ने आली को उस पर झुकते हुए देखा तो बोला। हाँ, मैं जाता हूँ। आली ने उसे अपनी मताए जान की तरह अपनी बाहों में भर लिया और लेकर ऊपर आ गया। वो उसे अपने बेडरूम में ले आया और बेड पर लिटा दिया। वो बेसुध पड़ी थी, रंगत बिल्कुल सफेद पड़ रही थी। आली उसकी हालत देखकर घबरा गया। वदिया, होश करो। वो उसका हाथ सहला कर बोला। उसको अभी भी बहुत तेज बुखार था।
ودیا ودیا وہ اسے بےقراری سے پکار رہا تھا۔ آلی ولی نے پکارا، میں ڈاکٹر لے آیا ہوں، اس نے اپنے ساتھ کھڑے شخص کو دیکھ کر کہا۔ آئیں پلیز ڈاکٹر، انہیں دیکھیں، وہ بیڈ سے اٹھتے ہوئے بولا۔ ڈاکٹر نے ودیا کا معائنہ کیا، یہ بہت کمزور ہیں، بخار بھی کافی تیز ہے، میں انجیکشن لگا دیتا ہوں، آپ ان کی پٹیاں کریں اور جب انہیں ہوش آ جائے تو یہ دوائیاں دے دیجیے گا۔ وہ پیشہ ورانہ مسکراہٹ سجا کر بولے، انشاءاللہ انہیں جلد ہی ہوش آ جائے گا، بس انہیں خاص کیئر کی ضرورت ہے۔ وہ اٹھتے ہوئے بولا، تھینکس ڈاکٹر، آلی نے ہاتھ ملایا، میں انہیں چھوڑ کر آتا ہوں، تم اس کی پٹیاں کرو۔ ولی ڈاکٹر کو لے کر چلا گیا۔ آلی نے ودیا کی پٹیاں کرنا شروع کر دیں، ولی بھی آ گیا اور وہیں بیٹھ گیا۔ ہوا کیا ہے یار اسے؟ یہ اتنی بیمار کیوں کر ہو گئی ہے؟ وہ ودیا کی حالت پر افسوس کر کے بولا۔ جواباً وہ مختصر طور پر آلی نے سب کچھ بتا دیا۔ بیچاری نہ جانے کیا قسمت لے کر آئی ہے، بچپن سے اب تک اس نے مشکلات کا ہی سامنا کیا ہے، اکیلی جان، دکھوں غموں اور مشکلات کا پہاڑ۔ ولی نے ہمدردی سے کہا، ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ بھائی۔ آلی نے کہا، پتہ نہیں ابھی اس نے اور کتنی تکلیفیں دیکھنی ہیں۔ ولی بولا، نہیں بھائی، اب اور نہیں، اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونے دوں گا۔ اس کی زندگی کا تاریک باب آج بند ہوا اور میں انشاءاللہ اس کی آنے والی زندگی کو خوشیوں سے بھر دوں گا، یہ میرا اپنے آپ سے وعدہ ہے۔ آلی نے یقین سے کہا، ٹھیک ہے یار، میں چلتا ہوں، اگر کوئی مسئلہ ہو تو مجھے بتا دینا، مجھے صبح آفس بھی جانا ہے۔ ولی نے اٹھتے ہوئے کہا، تھینکس بھائی۔ وہ اس کا کندھا تھپتھپا کر بولا۔ تقریباً گھنٹے بعد جا کر اس کا بخار اترا۔ آلی نے پٹیاں کرنا بند کی، اس نے گھڑی دیکھی، رات کا 1 بج رہا تھا۔ وہ بیڈ کے دوسرے طرف آیا اور کراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، ٹانگیں بھی سیدھی کر لیں۔ وہ کل سے اب تک اتنا پریشان رہا تھا اور ودیا کے فون کے بعد سے وہ چین سے نہیں بیٹھا تھا، اب اس کا تھکن کے مارے برا حال ہو گیا تھا، تھکن کے باعث اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ ودیا نے کسمسا کر آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، بے دھیانی میں اس کا ہاتھ آلی پر گرا، آلی کی آنکھ کھل گئی۔ ودیا کو ہوش میں آتا دیکھ کر وہ فوراً اس کی طرف جھکا۔ ودیا تم ٹھیک ہو؟ اس نے اس کے چہرے کو تھپتھپایا۔ ودیا نے مشکل سے آنکھیں پوری واقعی پانی، اس نے دھیمے آواز میں سوکھتے حلق سے کہا، ہاں ہاں اٹھو شاباش۔ اس نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور فوراً دوسری طرف آ کر جگ سے پانی نکالا اور اسے پلایا۔ اس نے ایک ہی سانس میں گلاس خالی کر دیا اور دوبارہ گلاس آلی کی طرف بڑھایا۔ اور اور چاہیے؟ اس نے پیار سے پوچھا۔ ودیا نے نفی میں سر ہلایا۔ آلی نے ہاتھ بڑھا کر اس کے ماتھے پر رکھا۔ بخار تو کم ہو گیا ہے تمہارا، تم نے کچھ کھایا ہوا ہے کیا؟ اس نے پوچھا۔ اس نے ایسے پوچھا جیسے سمجھ میں نہ آیا ہو کیا کہا گیا ہے۔ میں تمہارے لیے کچھ لاتا ہوں کھانے کو، پھر دوا لینا، اوکے؟ وہ چمکارتے ہوئے کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ودیا نے سر کو مسلا اور ارد گرد کا جائزہ لیا۔ وہ اچھل پڑی، وہ آلی کے کمرے میں ہے۔ وہ یہ جان کر ہی اچھل کر بیڈ سے اٹھ گئی۔ وہ جانے کو پرتول رہی تھی کہ آلی ٹرے میں دودھ اور سلائس لے کر کمرے میں داخل ہوا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ گھبرا گیا اسے ایسے کھڑا دیکھ کر، وہ ابھی ٹھیک نہیں تھی۔ میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، وہ سر جھکا کر بولی۔ کون سا کمرہ؟ آلی نے مزے لے کر کہا، اپنے کمرے میں۔ وہ دھیمے لہجے میں سر جھکا کر شرم سے بولی، اچھا لیکن تم کہیں نہیں جا رہی کیونکہ اب سے یہ تمہارا بھی کمرہ ہے اور میرا بھی۔ وہ ٹرے بیڈ پر رکھ کر اس کے مقابل آ گیا۔ اس نے اسے کندھوں سے تھاما اور بیڈ پر بٹھا دیا۔ یہ کھا لو اور پھر دوائی لے لینا اور چپ کر کے سو جانا، وہ اس کو تنبیہ کر کے بولا۔ میں کپڑے چینج کر لوں، ابھی تک میں نے یونیفارم ہی پہن رکھا ہے۔ وہ مسکرا کر واش روم میں داخل ہوا۔ ودیا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ ہاتھ گود میں رکھ کر بیٹھی تھی کہ آلی چینج کر کے بھی آ گیا۔ تم نے اب تک کھایا نہیں؟ وہ اس کے مقابل بیٹھ کر بولا۔ جلدی سے کھاؤ پھر دوائی دیتا ہوں تمہیں، وہ دودھ کا گلاس اس کی طرف بڑھا کر بولا۔ ودیا نے چپ کر کے گلاس تھام لیا۔ آلی مسکرایا، تم تو اچھی لڑکی بنتی جا رہی ہو ودیا۔ ودیا نے کنکھیوں سے اسے دیکھا اور زیر لب مسکرائی۔ یہ دوائی لے لو۔ اس نے ٹیبلٹ اسے تھمائی۔ اب تم سو جاؤ ودیا، تمہاری طبیعت ابھی پوری طرح سنبھلی نہیں ہے، وہ کہہ کر اٹھ گیا۔ میں یہاں کیسے سو سکتی ہوں؟ وہ گھبرا کر اٹھ گئی۔ کیوں نہیں سو سکتی؟ تم میری منقوہ ہو اور اپنے شوہر کے کمرے میں سونے کے لیے تمہیں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، وہ تیور بدل کر بولا۔ پھر میں یہاں، وہ بلش ہو گئی، چہرے پر قوس و قزح کے رنگ بکھر رہے تھے۔ آلی کو یہ جھلمل سی قوس و قزح پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ وہ چند قدموں کا فاصلہ طے کر یکدم اس کے سامنے آیا۔ جانتی ہو ودیا، مجھے تم سے کبھی ہمدردی نہیں رہی تھی، بڑی نفرت کرتا تھا میں تم سے، وہ ایک جذب کے عالم میں بول رہا تھا۔ ودیا نے نظریں اٹھا کر بدلے ہوئے آلی کو دیکھا۔ یہ وہ آلی نہیں تھا جس سے وہ ہمیشہ بیزار رہتی تھی، یہ تو ایک الگ، ایک منفرد آلی تھا جو اس کے دل کے تخت پر چپکے سے براجمان ہو گیا تھا۔ پھر جب سے تم سے نکاح کا فیصلہ کیا تب شاید تم پر ترس آ گیا تھا۔ مجھے پیار و محبت جیسے جذبات شاید اس وقت بھی میرے دل میں نہیں تھے، مگر شاید یہ ہمارے درمیان مقدس رشتہ
ہی وجہ بنا میرے دل میں تمہارے لیے پیار کا جذبہ پیدا کرنے کا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ ودیا کے گال لال ہو رہے تھے۔ آج اس کی آنکھوں میں نفرت یا بیزاری نہیں تھی، بلکہ وہی رنگ جھلک رہے تھے جو عالی کی آنکھوں میں تھے۔ زندگی میں پہلی بار عالی کو سننا اسے اچھا لگ رہا تھا۔ جانتی ہو، جب تم مجھ سے فون پر بات نہیں کرتی تھی، جب میں آتا تو کتراتی تھی، مجھے عجیب بے چینی ہو جاتی تھی۔ تم پر غصہ بھی بہت آتا تھا۔ اس کے اوپر وہ نائلہ، وہ خفگی سے بولا۔ آپ پہلے نائلہ کو چاہتے تھے نا علی؟ ودیا نے بے ساختگی سے پوچھ لیا۔ کم آن، میں بھلا اس میک اپ کٹ کو کیوں چاہنے لگا؟ عجیب بےہودہ لڑکی ہے وہ۔ پتہ ہے جب تم وہاں تھی حویلی میں تو مجھے تمہاری کتنی فکر ہو گئی تھی۔ سارا غصہ جو تم پر تھا ہوا ہو گیا۔ پھر مجھے شدت سے احساس ہوا کہ تم نے تو میرے دل پر قبضہ جما لیا ہے، اور میرا دل اب میرا نہیں رہا۔ وہ اپنا ہاتھ سینے پر رکھ کر بولا۔ کل تمہارے فون کے بعد مجھے لگا کہ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو شاید میرا جینا ناممکن صحیح لیکن بہت دشوار ہو جائے گا۔ وہ اس کو شانوں سے پکڑ کر اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا۔ آج میں تم سے برملا کہہ رہا ہوں کہ مجھے تم سے محبت ہے ودیا۔ شاید محبت تمہیں بھی ہے نا؟ مجھ سے، کیونکہ تمہاری آنکھوں کی چمک اور چہرے کی حیا یہ بتا رہی ہے کہ جو میں سوچ رہا ہوں وہ صحیح ہے نا؟ وہ اشتیاق سے بولا۔ ودیا نے شرما کر سر جھکا لیا۔ عالی اور اس کے درمیان بہت کم فاصلہ تھا۔ اب میں جاؤں؟ وہ آہستگی سے بولی۔ کہاں جانا ہے آپ کو زوجہ عالی؟ اپنے کمرے میں۔ یہ بھی تو تمہارا ہی کمرہ ہے، اور سامنے کھڑا یہ نوجوان تو پورا پور پور تمہارا ہے۔ وہ شوق ہوا۔ ودیا سائڈ سے نکل کر بڑھی تو علی نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ پاس ہی مسجد سے فجر کی اذان آنا شروع ہوئی۔ مؤذن خدا کے بندوں سے ملاقات کرنے کے لیے نیند کی وادی سے واپس بلا رہا تھا۔ ودیا، جس طرح یہ اذان فجر حق ہے اور سچ ہے نا، یہ اذان کے بول پاکیزہ ہیں، اسی طرح ہمارا رشتہ بھی سچ ہے اور میری محبت پاکیزہ ہے۔ تمہیں اس پر اعتبار ہے نا؟ ودیا نے کھڑکی کی طرف دیکھا جہاں سے اذان کی آواز آ رہی تھی، پھر علی کو دیکھ کر مسکرائی اور بولی۔ مجھے اعتبار ہے، وہ کہہ کر نکل گئی۔ آج اسے اذان فجر کے ساتھ سجدہ شکر بھی بجا لانا تھا۔ علی نے ایک لمبا سانس کھینچا اور مسکرا کر آنکھیں بند کر لی۔ نماز پڑھ کر جو سوئی تو آنکھ 10 بجے کھلی۔ وہ بہت حشاش بشاش سی اٹھی، نہا کر نیچے آئی۔ السلام علیکم ماموں۔ وہ انہیں دیکھ کر مسکرائی اور ان کی طرف بڑھی۔ وہ ودیا کو اچانک دیکھ کر حیران ہوئے اور خوش بھی۔ وعلیکم السلام بیٹے، تم کب آئی؟ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر بولے۔ رات کو آئی تھی ماموں۔ وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ کس کے ساتھ؟ علی کے ساتھ۔ وہ تمہیں لے کر آیا ہے؟ مجھے تو بتایا ہی نہیں کہ تمہیں لینے جا رہا ہے، بتا دیتا تو میں بھی آتا۔ انہیں حیرانی ہوئی۔ السلام علیکم ابو۔ ولی بھی آ گیا۔ وعلیکم السلام، دونوں نے ہی جواب دیا۔ تم ٹھیک ہو اب ودیا؟ وہ اخبار لے کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا ہے تمہیں بیٹا؟ وقار صاحب فکر سے بولے۔ ماموں بخار تھا، اب میں بالکل ٹھیک ہوں، بس تھوڑی کمزوری ہے۔ وہ مسکرائی۔ میں آپ کے لیے چائے لاتی ہوں۔ وہ اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ یہ کب آئے تھے رات کو؟ وقار صاحب نے ولی سے پوچھا۔ ابو تقریباً 10-11 بجے آئے تھے، ٹھیک سے وقت مجھے یاد نہیں ہے۔ وہ شہ سرخیاں دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ ٹرے لے کر آئی تو مامی بھی آ گئی۔ کون تمہیں دوبارہ اٹھا لایا وہاں سے؟ یا پھر وہ خود تمہاری منحوسیت سے تنگ آ کر تمہیں دوبارہ یہاں پھینک گئے ہیں؟ وہ نفرت سے بولی۔ رقیہ خبردار، اگر اب تم نے ایسی کوئی بات کی سمجھی نا؟ وقار صاحب ودیا کے بولنے سے پہلے ہی بول پڑے۔ ہوں، اللہ اللہ کر کے یہ نکلی تھی، اب دوبارہ لوٹ آئی ہے۔ اتنی اہم خبر وہ بھلا کیسے اپنی بہن کے گوش گزار نہ کرتی، لہٰذا الٹے قدموں لوٹ گئیں۔ ان کے فون کا نتیجہ تھا کہ اگلے گھنٹے میں ذکیہ خالہ کے ہمراہ اپنے جگر گوشوں کے موجود تھیں۔ ابھی وہ ناشتے سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ وہ لوگ آ گئے۔ وقار صاحب کمرے میں چلے گئے۔ یہ کل موہی دوبارہ کیسے آ گئی؟ ذکیہ بیگم آنکھیں نچا کر بولی۔ نائلہ کو تو اس کے واپسی سے پتنگے لگ گئے تھے۔ شمائلہ بھی تفکر سے بیٹھی تھی۔ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ بلا ٹلی، اب علی کو کسی نہ کسی طرح منا لیں گے کہ اب وہ یہاں تو ہے نہیں، وہیں کہیں مر کھپ جاتی تو اچھا ہوتا۔ رقیہ بیگم نفرت سے گویا ہوئی۔ اب کیا ہوگا اماں؟ کیا میری شادی کبھی علی سے نہیں ہوگی؟ نائلہ فکر مندی سے بولی۔ ارے نہیں، تو فکر نہ کر، مجھے یقین ہے علی کا اسے کوئی دلی لگاؤ نہیں ہے، وہ اسے ضرور چھوڑ دے گا۔ اسے چھوڑنا ہی ہوگا اس بد کردار کو۔ رقیہ بیگم اسے تسلی دے کر بولی۔ بس آپا، جو بھی کرنا ہے آج ہی کر لو، میں تمہارے لیے اپنی بیٹی کو ساری زندگی نہیں بٹھا سکتی۔ اس کے ایک دو بہت اعلیٰ رشتے ہیں، وہ تو بڑا اصرار کر رہے ہیں، مگر مجھے تمہاری محبت کا پاس ہے، آج کا آج ہی فیصلہ کر لو۔ ہاں، ذکیہ بیگم نے ان پر دباؤ ڈالا اور جھوٹ بولا۔ ہاں خالہ، اب بہت ہو گیا، آج ہی بات کر لیں آپ علی سے اور اس ودیا کو چلتا کریں۔ شمائلہ نے بھی وزن ڈالا۔ گڈ مارننگ ایوری ون۔ علی بڑے اچھے موڈ میں حشاش بشاش سا نیچے اترا۔ واہ جی واہ، آج تو بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، وہ خوشگوار موڈ میں بولا۔ پیلے بالوں میں سفید کرتے شلوار میں
रिलैक्स सा, वो बहुत हैंडसम लग रहा था। आप कब आईं? वो ज़किया खाला से बोला। बस अभी थोड़ी देर हुई, वो बुझ जाने वाले अंदाज में बोली। तुम कब आए हो आली? नायला बड़ी अदा से बोली। रात को आया था, मैं और वदिया इकट्ठे आए हैं। इनफैक्ट मैं ही उसे लाया हूँ, वो ज़रा तफसीली जवाब देकर बोला। तुम उसे लाए हो? रुकैया बेगम हैरान हुई। जी। वो मुस्कुराया। वदिया लवाजमात लेकर लाउंज में आई। वदिया को देखकर चमक आली की आंखों में उमड़ आई और लब खुद ब खुद मुस्कुराए। वदिया भी आली को देखकर झेप कर मुस्कुरा दी। नायला की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे अपने सारे खेल पर पानी फिरता हुआ महसूस हुआ। उसने शुमाइला की तरफ देखा। वहां का हाल भी मुख्तलिफ ना था। आपके लिए नाश्ता लाऊं? वदिया ने पूछा। नहीं, नाश्ता नहीं, बस यार एक कप चाय दे दो। वो पुरतकल्लुफ सा बोला। रिजवान यार, तुम सुनाओ कि कोई काम वाम शुरू किया कि आवारागर्दी की ही शैदाई? वदिया के जाने के बाद वो रिजवान की तरफ मुतवज्जो हुआ। हाँ, कोशिश की तो है, कोई काम मुझे अपने लायक नहीं लगता। हाँ हाँ हाँ। हाँ, बल्कि अपने लायक क्या काम हो सकता है, बल्कि आपके शायान शान कोई काम अभी बना ही नहीं। वो तमस्कुराना लहजे में बोला। आपा अभी बात कर लो, इसका मूड अच्छा लग रहा है। जकिया बेगम रुकैया बेगम के कान में बोली, मगर पस पर्दा वो खटक गईं। वो ये मामला जल्द अज जल्द निपटा लेना चाहती थी। वदिया चाय लेकर आई। उसने चाय आली को थमाई और पलटने लगी। तुम कहाँ जा रही हो? वो कप साइड टेबल पर रखकर बोला। किचन में जा रही हूँ। वो दुपट्टा दुरुस्त करते हुए बोली। कभी हमारे साथ भी बैठ जाया करो तुम। क्या हर वक्त किचन की मलका बनी रहती हो? वो उसे अपने साथ बिठाते हुए बोला। नायला ने पहलू बदला। उसका अंग अंग वदिया और आली की बेतकल्लुफी पर बेचैन हो रहा था। आली, तुम इसे वापस क्यों लाए हो? रुकैया बेगम बिला तमहीद बांधे खड़े तेवर उसे बोली। क्या मतलब अम्मी, क्यों लाया हूँ? इसका अपना घर है और अपने घर में आने के लिए वजह जरूरी नहीं। आली हैरान हुआ। इतनी मुश्किलों से इस बदकिरदार लड़की से जान छूटी थी और तुम वापस इस मुसीबत की पुड़िया को लाए हो? वो नागवारी से बोली। जबकि आली ने पहलू बदला और वदिया अपने आप में शर्मिंदा हो गई। आली, मैंने तुमसे पहले भी कहा था इस किस्से को खत्म करो और नायला से शादी कर लो। ये मेरी ख्वाहिश है, तहक्कुमाना अंदाज में कहा गया। और मैंने भी कहा था अम्मी कि मैं नायला से शादी नहीं करूंगा। वो अदब को मलहूज खातिर रख कर बोला। क्यों, क्या बुराई है हमारी नायला में जो तुम शादी नहीं कर सकते? शुमाइला ने भी एंट्री ली। आप एक अच्छाई बता दें। आली ने लिहाज साइड पे किया। वकार साहब भी शोर सुनकर बाहर आए। वो तमाम वाकयात से यकसर अनजान थे। उन्होंने आली की निगाहों में दबा दबा गुस्सा महसूस किया। वदिया चोर बनी उसके पहलू में बैठी थी, जबकि रुकैया बेगम इश्तियाल में लग रही थी। बस मैं कुछ नहीं जानती, तुम इस बदकिरदार, बदचलन और मनहूस को तलाक दो और फिर मैं तुम्हारी शादी नायला से कराऊंगी। बस अम्मी, बहुत हो गया। आली गुस्से से खड़ा हुआ। अब मैं अपनी बीवी के मुतालिक एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। वो उंगली के इशारे से बोला। तुम इस बदकिरदार लड़की की वजह से अपनी माँ से इस तरह बात कर रहे हो, इस लड़की के लिए जो न जाने कहाँ 2 रातें मुंह काला करके आई है। ज़किया बेगम ने उसे गैरत दिलाई। बस करे खाला, मेरा मुंह ना खुलवाएं। अगर मेरा मुंह खुल गया ना तो आप सारे किसी से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहेंगे। वो इश्तियाल में बोला। वदिया की हालत ऐसी थी कि काटो तो बदन में लहू नहीं। वकार साहब भी मुंह खोले खड़े थे। रुकैया बेगम का रंग अपने फर्माबरदार बेटे के रवैये पर उड़ रहा था। क्या हुआ है? सब ठीक है? वली भी आ गया। एक कशीदगी फिजा में महसूस करके वो बोला। जी भाई, अब सब ठीक होने वाला है। आली उसे देख कर बोला। और क्या खाला, आपने बदकिरदार की गिरदान लगा रखी है? हाँ हाँ, ये लड़की जितनी पाक दामन है ना, उतनी आपकी बेटियां भी नहीं है। वो वदिया का हाथ पकड़कर उसे सामने लाकर बोला। और इसकी पाक दामनी की गवाही मैं खुद दे रहा हूँ। आली के जब्त का पैमाना उसके हाथ से झलक गया। आली, जबान संभाल कर बात करो। ये तुम किस तरह बात कर रहे हो अपनी खाला से? रुकैया बेगम इश्तियाल से बोली। बस अम्मी, अब मैं लिहाज और मुरव्वत से बात नहीं कर सकता। वो हाथ उठाकर बोला। और खाला, आप तो जानती ही होंगी कि वदिया वो 2 दिन कहाँ गुजार कर आई है ना? वो जकिया की तरफ मुड़ा। आप लोगों ही ने तो इसे अगवा किया था। उसने धमाका किया। जकिया बेगम का भी मुंह खुल गया। सब कुछ सांप सूंघ गया। आली, वकार साहब सोफे का सहारा लेकर बोले। जी अब्बू, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। वदिया अपनी मर्जी से नहीं गई थी, इसे खाला लोगों ने अगवा किया था। उसने उंगली सबकी तरफ उठाई। खाला तो नजरें इधर उधर फेरने लगी। नायला, शुमाइला और रिजवान की हालत काबिले दीद थी। वो एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। ये इल्जाम है हम पर। नायला बमुश्किल थूक निगल कर बोली। अच्छा जी, इल्जाम है ये? आली ने अल्फाज पर जोर देकर कहा। फेदा और शैदा नाम था ना रिजवान के दोस्तों के, जिनके साथ मिलकर उसे उठाया गया था और छोड़ भी गए थे। वो अब रिजवान को देखकर बोला। वो नाम सुनकर उछल पड़ा। उसने आली के तेवर देखकर थूक निकला। सही मानों में उनके तोते उड़ गए थे। मुझे ये सब बहुत पहले ही पता चल गया था, मगर मैं सिर्फ इस घर की इज्जत के लिए खामोश रहा। और
ان دونوں کو میں نے پکڑ بھی لیا تھا، 2 ہاتھ لگائے کہ طوطے کی طرح بولنے لگے۔ وہ انکشافات پر انکشافات کر رہا تھا۔ رقیہ بیگم بھی حیران و پریشان، کبھی عالی کو دیکھتی تو کبھی ذکیہ بیگم کے جھکے سر کو، کیونکہ ان کا بھانڈا پھوٹ گیا تھا۔ مگر یہ سب کریں گے کیوں یار؟ ولی ضد ہو گیا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جائیداد کے لیے، وہ جائیداد جو ودیعہ کے دادا نے اس کے نام کی تھی۔ پلان تو بہت خوب تھا خالہ، پہلے اغوا کرایا، پھر اسے بد چلن ثابت کیا، پھر اپنے نکھٹو بیٹے کا رشتہ لے آئیں تاکہ دوسری بار انکار کرنے کا کوئی سوچ بھی نہ سکے۔ وہ طنز کر کے بولا۔ ودیعہ ہکا بکا کھڑی عالی کو تکے جا رہی تھی۔ وقار صاحب اور ولی ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ شمائلہ کا شرمندگی کے باعث سر جھکا تھا، اسے اپنے گھر کی پڑ گئی تھی۔ آخر کو وہ تو اس کھیل کا اہم حصہ رہی تھی، اب کیا ہوگا میرے ساتھ؟ وہ یہ سوچ رہی تھی۔ نائلہ خالہ اور رضوان شرمندہ لگ رہے تھے، جبکہ رقیہ بیگم کی آنکھوں سے اشک رواں تھے۔ تم چلو میرے ساتھ، عالی نے ودیعہ کا ہاتھ تھاما اور لے کر اوپر جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ وہ ایک ٹرانس کی کیفیت میں اس کے پیچھے چل پڑی۔ آپا، ذکیہ بیگم نے رقیہ بیگم کا ہاتھ پکڑنا چاہا، انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا اور اٹھ کر اندر چلی گئیں۔ وقار صاحب اور ولی بھی اٹھ گئے۔ سارے کیے کرائے پر عین وقت پر پانی پھر گیا۔ نائلہ نخوت سے بولی، اماں میرا کیا ہوگا؟ شمائلہ کی آواز رند گئی۔ اللہ ہی جانے، ذکیہ بیگم نے سر پکڑ لیا۔ عالی اسے لے کر کمرے میں آیا، اسے بیڈ پر بٹھایا اور خود 2 زانو ہو کر اس کے سامنے زمین پر ٹک گیا۔ ودیعہ کو بہت بری طرح شوق لگا تھا، وہ خالی خالی نظروں سے عالی کو دیکھ رہی تھی۔ عالی نے اس کے ہاتھ تھامے۔ آئی ایم سوری ودیعہ، مجھے معاف کر دو، مجھے تم سے کچھ چھپانا نہیں چاہیے تھا، وہ شرمندگی سے بولا۔ عالی، آپ کو سب پتا تھا، پھر بھی آپ چپ رہے۔ آپ کو پتا ہے مجھ پر کتنی بار بدچلنی کا الزام لگایا ہے، سب نے میرے کردار، میری عزت کے پرخچے اڑائے گئے، اور آپ چپ رہے۔ مجھے بات بات پر طعنے تشنے دیے گئے، یہاں تک کہ میرے باپ کو بھی نہیں بخشا، اور آپ چپ رہے۔ ودیعہ نے دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا لیا۔ میں جانتا ہوں کہ مجھ سے بھول ہو گئی ہے۔ عالی نے جلدی سے اس کے چہرے سے اس کے ہاتھ ہٹائے۔ پلیز ودیعہ، میری غلطی کو معاف کر دو پلیز، وہ التجا کر رہا تھا۔ عالی، آپ بتائیں میں کس کس کی غلطی کو معاف کروں؟ آپ جانتے ہیں پچھلے 6 ماہ میں نے کس کرب سے گزارے ہیں، جب جب مجھ پر الزام لگائے گئے ہیں۔ اس کی ہچکیاں بن گئیں۔ پلیز ودیعہ، رو نہیں، مجھے تمہارے اس طرح رونے سے تکلیف ہو رہی ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ تمہارے ساتھ ہونے والی ہر زیادتی کا مداوع کر سکوں، تمہیں وہ تمام خوشیاں دوں جن پر تمہارا حق ہے، جتنا کہ باقی سب کا۔ وہ اسی عزم سے بولا، مگر اس کے لیے تمہیں مجھے معاف کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے بتاؤ معاف کیا؟ ودیعہ نے آنسو صاف کیے، اور سر ہلایا۔ تھینک یو سو مچ ودیعہ، تم نے میرے دل سے بہت بڑا بوجھ اتار دیا ہے، میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ اب تمہیں خود سے الگ ہرگز نہیں رکھوں گا، تم میرے ساتھ رہو گی جہاں جہاں میں رہوں گا، تاکہ ہمارے درمیان کوئی بھی تیسرا غلط فہمیاں پیدا نہ کر سکے، جیسا کہ نائلہ نے کرنے کی کوشش کی۔ مگر آپ اسے چاہتے تھے نا علی، اس نے مجھے بتایا، اور وہاں سے وہ سوٹ بھی آپ اسی کے لیے لائے تھے، حالانکہ لانا اصولاً میرے لیے چاہیے تھا۔ وہ ناراض ہو کر بولی۔ عالی نے جلدی سے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ تمہیں کس نے کہا کہ میں اس میک اپ کٹ کو چاہتا ہوں؟ میرے اتنے برے دن نہیں آئے، اور وہ سوٹ میں خاص کر تمہارے لیے لایا تھا، اتنے شوق سے جو اس نے ہتھیا لیا۔ میرے لیے یہی بہت ہے جو میرے سامنے بیٹھی ہے۔ ودیعہ کے چہرے پر حیا کی لالی آ گئی، اس نے فوراً سر کو جھکا لیا اور مسکرا دی۔ شمائلہ ابھی تک اپنی جگہ پر گمسم سی بیٹھی ہوئی تھی۔ ولی باہر سے آیا، اسے دیکھا اور نظر انداز کر گیا۔ شمائلہ اس کی بے رخی سے ڈہل گئی۔ جو بھی تھا، ولی اس کا شوہر تھا اور اسے بہت عزیز تھا۔ ولی، اس نے سیڑھیاں چڑھتے ولی کو آواز دی۔ ابھی کچھ نہیں شمائلہ، ابھی میں کچھ سننے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، وہ کہہ کر اوپر چلا گیا، اور شمائلہ کا اٹھایا ہوا ہاتھ گر گیا اور آنکھیں بھر آئیں۔ اگلی صبح واپس جانے کے لیے تیار تھا۔ وہ نیچے اترا تو اس بار وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ ودیعہ بھی ہمراہ سامان لے کر کھڑی تھی۔ ابو، اس نے بیگ نیچے رکھا، تم جا رہے ہو؟ وہ مسکرائے۔ جی ابو، ہم جا رہے ہیں، اس نے ہم پر زور دیا۔ وقار صاحب نے گردن موڑ کر دیکھا تو ودیعہ بھی کھڑی تھی۔ ابو، میں نہیں چاہتا کہ کوئی اور مسئلہ ہو گھر میں، عجیب کھچا کھچا سا ماحول ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ ماحول خراب ہو۔ مجھے علم ہے کچھ وقت درکار ہوگا سب کو نارمل ہونے میں۔ مگر وقار صاحب بولنا چاہتے تھے، مگر عالی نے روک دیا۔ ابو، ودیعہ میری ذمہ داری ہے جسے میں نے بخوشی قبول کیا ہے، اب آپ مجھے وہ ذمہ داری نبھانے دیں۔ وہ مسکرایا۔ رقیہ بیگم اور شمائلہ شرمندہ شرمندہ سی چور بنی بیٹھی تھیں۔ ہوں بیٹا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، وہ بمشکل مسکرائے۔ آپ اسے ودیعہ کی رخصتی سمجھیں، وہ اپنے میکے سے سسرال جا رہی ہے، اپنے شوہر کے گھر۔ وہ ودیعہ کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ جواباً وہ بھی مسکرا دی اور حیا سے نظریں جھکا لیں۔ ہاں ہاں بالکل۔ وقار صاحب آگے بڑھے اور ودیعہ کو ساتھ لگا لیا۔ مجھے معاف کر دینا بیٹا، میں شاید ٹھیک طرح سے تمہاری ذمہ داری نہیں اٹھا سکا۔ وہ شرمندگی سے بولے۔ نہیں ماموں، ایسا مت کہیں،
वो तड़प कर अलग हुई। आपने मुझे बहुत प्यार, बहुत मान दिया है। मैं आपकी बेहद मशहूर हूँ। वो उनका हाथ थाम कर बोली, जाओ बेटा अपने घर जाओ। वो उसका हाथ चूम कर बोले और सर पर प्यार दिया। अच्छा अम्मी हम चलते हैं। आली उनके सामने प्यार लेने के लिए झुका। उन्होंने उसका माथा चूमा। जाओ बेटा खुदा के हवाले। अच्छा मामी चलती हूँ। मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। वदिया उनके सामने आई। रुकैया बेगम ने बढ़कर उसे गले लगा लिया। उनकी आंखों में नमी उतर आई थी और फिर शफकत से सर पे हाथ फेरा, मगर शर्मिंदगी और अपने गुज़श्ता रवैयों की वजह से वो कुछ बोल ना पाईं। फिर दोनों ने शुमाइला को खुदाहाफिज़ कहा और रख्ते सफ़र बाँधा। रात को बेड पर लेटे हुए वो शर्मिंदगी से आंसू बहा रही थीं। उन्हें जब सच्चाई का इल्म हुआ था, वो बहुत बेचैन हो गई थीं। उन्होंने दूसरों की बातों में आकर एक यतीम बच्ची के साथ ज़्यादतियों पर ज़्यादतियाँ की, मगर उस साबिर बच्ची ने कभी कुछ पलट कर जवाब ना दिया था। अब वो अपने किए पे नादिम थे। वक़ार साहब उनकी हिचकियों से डिस्टर्ब होकर उठे और लाइट जलाकर ग्राउंड में टेक लगाकर बैठ गए। अब क्या फ़ायदा आँसू बहाने का? वो दोनों हाथ सीने पर बाँध कर बोले। रुकैया भी उठ गई। मुझे किसी पल चैन नहीं आ रहा ये सोच-सोच कर कि मैंने उस मासूम के साथ कितना बुरा किया है। वो दोनों हाथ गोद में रखे सर झुकाकर बोली। ये सब तुम्हारे कच्चे कानों और दूसरा तुम्हारी मनफी सोच की वजह से रौनुमा हुआ है। ना तुम दूसरों की फ़ुज़ूल और बेमानी बातों में आती और ना इस मासूम के साथ बुरा करती, बल्कि तुम्हें तो उससे दिल लगाना चाहिए था। खुदा ने तुम्हें उसके रूप में बेटी से नवाज़ा था। वो हमारे घर में रहमत बनकर आई थी, मगर तुमने उसके साथ बुरा सलूक रखा। मैं शर्मिंदा हूँ वक़ार, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। यकीन मानें, ये एहसास मुझे ना सोने दे रहा है और ना ही चैन लेने दे रहा है। वो उनके हाथ पर अपना हाथ रखकर बोलीं। वक़ार साहब ने उनका हाथ थपथपाया और बोले, खुदा का शुक्र अदा करो, अभी देर नहीं हुई है। अभी भी तौबा के दरवाज़े खुले हैं। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, यही तुम्हारी इस्लाह की निशानी है। उस करीम ज़ात ने तुम्हें और भटकने नहीं दिया, बल्कि तुम्हें सही राह की तरफ गामज़न कर दिया है। मैं वदिया से मिलकर उससे माफ़ी माँगना चाहती हूँ वक़ार, अपने तमाम बुरे रवैयों की। हाँ, हाँ, ज़रूर, मैं आली से कहूँगा कि वो जल्द चक्कर लगाए, या फिर दोनों चलेंगे उनसे मिलने। अब तुम आराम करो, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है। वो उन्हें बिस्तर पर लिटाते हुए बोले। वदिया को यहाँ आने के बाद पहली बार आज़ादी का एहसास हुआ था। यहाँ आकर वो अपने आप को आज़ाद पंछी महसूस कर रही थी, जो एक तवील अरसा पिंजरे में रहकर आज़ाद हुआ हो, जो आज़ादी के बाद आसमान की वुसअतों को छूना चाहता है और एक लंबी उड़ान भरता है। उसे ये घर बहुत पसंद आया। घर अच्छे तरीके से डेकोरेट था। यहाँ पर आने के बाद उसे कोई काम भी नहीं करना पड़ता था। आली ने उसे सख्ती से मना किया था कि वो घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाएगी। फिर उसे फारिग रहने की कहाँ आदत थी, सो वो हल्के-फुल्के काम खुद करती थी, खासकर किचन में वो मुलाजिम के साथ खाना वगैरह मिलकर या फिर खुद बनाती थी। यहाँ पर हल्का अहबाब न होने के बराबर था। रिश्तेदार तो यहाँ थे नहीं और चूंकि आली अकेला होता था, तो मोहल्ले वालों के साथ ताल्लुकात भी ना थे। आली सुबह जाता और शाम तक उसकी वापसी होती। इस दौरान वो अपनी निगरानी में सफाई कराती, फिर खाना वगैरह का इंतजाम करती थी और फिर माली के साथ मिलकर लॉन की काट-छाँट और पानी वगैरह डलवाती थी। निखरा-निखरा सा घर उसे बहुत प्यारा लगता था। ये उसका कमाल था कि उसके आने के बाद घर 24 घंटे साफ होता था, हर चीज़ चमकती हुई मिलती थी, वरना पहले मुलाजिम भी इतनी तवज्जो से काम नहीं करते थे। और आली को तो उसकी कोई परवाह नहीं थी कि घर में झाड़ू भी फिरा है या नहीं। उसे आज यहाँ आए हुए 5वां दिन था। वो माली से लॉन में काम करा अंदर आई थी। उसने आज मोतिये और रात की रानी के गमले मंगवाकर अपने कमरे की खिड़की के सामने लगवाए थे, ताकि उनकी खुशबू से कमरा मुअत्तर रहे। उसे उनकी खुशबू बहुत पसंद थी। अंदर आकर उसने बाथ लिया और फिर मुलाजमा से चाय का कहा और लाउंज में आ गई। बाहर काली घटाएं छा रही थी। उसने भड़कर खिड़कियां खोल दी, घड़ी पर नजर दौड़ाई और मुस्कुराकर ज़ेरे लब बोली, वो आने वाले होंगे। फिर उसने मुलाजिमा से उसके लिए भी चाय का कहा और खुद खिड़की में सर टिकाकर बाहर के मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होने लगी। शाम ढल रही थी, आसमान पर काली घटाओं का राज था और हल्की-हल्की ठंडी हवाएं दरख्तों के पत्तों से अठखेलियाँ कर रही थी। पत्तों की सनसनाहट फिज़ा में मधुर मौसीकी सुना रही थी। वो माहौल में पूरी तरह गर्क थी। जब आली ने आकर उसे पीछे से पकड़ लिया, उसकी दबी चीख निकल गई। वो उसके सर पर ठोड़ी जमाकर बोला, क्या कर रही थी यहाँ ज़ौजा मोहतरमा? वो शोक होकर बोला, यहाँ आने के बाद वदिया को एक नया और बिल्कुल अलग आली लगा था, जो उसे टूट कर चाहता था। उसे हर वक्त पलकों पर बिठाए रखता था। उसके कहने से पहले उसकी फरमाइश पूरी करने के लिए बेताब रहता था।
आली, आपने मुझे डरा दिया। वो एक चपत उसके सर पर मार कर बोली, मुझे याद कर रही थी तो इसकी कोई जरूरत नहीं क्योंकि बंदा आपके पास मौजूद है। वो मुस्कुराया। मैं आपको याद नहीं कर रही थी बल्कि मौसम एंजॉय कर रही थी। वो उसे चिढ़ाने के लिए बोली। अच्छा जी, वो बोला। हाँ जी। वो भी उसी के अंदाज में बोली, अब आप जल्दी से फ्रेश हो जाएं, मैं आपका चाय पर इंतजार करूंगी। वो उसके हिसार से निकल कर बोली, जैसा आप कहें ज़ौजे आली। वो थोड़ा झुक कर बोला। वदिया मुस्कुरा दी। रात को वो घर चेक करके कमरे में आई। आली खिड़की के पास खड़ा था। वो उसको देखकर मुस्कुराया। इधर ही आ जाओ, बहुत सुहानी हवा चल रही है। वो बाहर देखकर बोला। वदिया उसके हमरा जा खड़ी हुई और उसके बाजू में बाजू डालकर उसके कंधे पर सर टिकाकर हवा को महसूस करने लगी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। हवा से उसके बाल लहरा कर बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे। आली ने चेहरे पर रक्स करते उसके बालों को देखा तो एक तबस्सुम उसके चेहरे पर बिखर गया। उसने हाथ बढ़ाकर उसके बाल पीछे किए। आप खुश तो हैं, ज़ौजा आली? हूँ, बहुत। वो बंद आंखों से बोली, फिर सर उठाकर बोली, और आप? आंखों में खूबसूरत मुस्कुराहट थी। हूँ, खुश तो हूँ, मगर मुतमईन नहीं। वो संजीदगी से बोला, क्यों, क्या हुआ है आली? वो परेशान हो गई। वो उसे लेकर बेड पर आ गया, उसे बिठाकर बोला, मैं मुतमईन कैसे हो सकता हूँ वदिया जब मेरी माँ बेचैन हो? क्यों, क्या हुआ है? सब खैरियत तो है ना? वो घबरा गई। हूँ, अब्बू का फोन आया था, वो कह रहे थे कि अम्मी तुमसे बहुत शर्मिंदा हैं। वो तुमसे माफी मांगना चाहती हैं अपने तमाम रवैयों की। वदिया सर झुकाकर सुन रही थी। आली ने बेकरारी से उसका हाथ थामा। प्लीज वदिया, मैं जानता हूँ कि अम्मी ने तुम्हारे साथ कभी भी अच्छा सलूक नहीं किया, फिर भी तुम उन्हें माफ कर दो। तुम्हारा दिल तो बहुत वसी है ना? वदिया ने सर उठाया। आली, मुझे अफसोस है कि आप मुझे अब तक जान नहीं पाए। वो संजीदगी से बोली। अगर जान पाते तो ये कभी ना कहते। आपने सोचा भी कैसे कि मैं मामी के लिए दिल में कोई कदूरत रखूंगी? मैंने तो उन्हें उसी वक्त माफ कर दिया था जब उन्होंने मुझे गले लगाया था। आली ने इस बड़े ज़र्फ की लड़की को गौर से देखा, जिसने अपने साथ होने वाली ज्यादतियों को भुलाने में एक पल भी नहीं लगाया था। मुझे फ़क्र है वदिया कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ, तुम जैसी मजबूत और बुलंद किरदार लड़की का। वो उसके माथे पर बोसा देकर बोला। रही बात शुमाइला भाभी की, तो मेरा दिल नहीं मानता कि उनसे नफरत करूं। खुदा उन पर कितना मेहरबान है और इतनी बड़ी फजीलत उन्हें बख्श रहा है कि वो एक नई जिंदगी को जन्म देने जा रही थी। बेशक अपनों का प्यार, उनका नफा हर इंसान चाहता है। उन्होंने भी चाहा, बस रास्ता गलत इख्तियार किया। वो अफसोस से बोली, फिर भी मेरा दिल नहीं मानता कि मैं उससे नफरत करूं। वो एक जज्ब से बोली, मैंने सबको माफ किया अली, आप गवाह रहिएगा। वो उसके फराक सीने पर सर टिकाकर बोली, मैं गवाह हूँ वदिया। अली ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। तुम वाकई एक अजीम लड़की हो वदिया, बहुत अजीम। और मैं तुम्हें पाकर दुनिया का अमीर तरीन शख्स बन गया हूँ। वैसे एक बात तो बताओ, शरारत उसकी आंखों में उभरी। हूँ, वदिया ने कहा, तुम ये फजीलत वाला नेक काम कब तक करने का इरादा रखती हो? कौन सा काम? उसने सर उठाया और हैरान होकर पूछा। भाई यही वाला, एक नई जिंदगी को जन्म देने वाला। वो शौक हुआ। वदिया के चेहरे पर हया की लाली बिखर गई। आप बहुत बुरे हैं आली। वो कनखियों से उसे देखते हुए उसके सीने पर मुक्का मारकर मुस्कुराई। आली का जानदार कहकहा बुलंद हुआ। उसने दोबारा उसे खुद से करीब कर लिया। वदिया ने उसके सीने पर सर रखकर सुकून से आंखें मूंद ली। उसकी जिंदगी अब मुकम्मल होने जा रही थी। उसकी ख्वाहिशात पूरी हो रही थी। खुशियों ने उसकी जिंदगी में दायमी डेरा डाल लिया। खत्म शुद्ध। हाँ जी, तो कैसा लगा आपको ये नॉवेल? अच्छा था। उम, वो दीमू को दौरे पड़ रहे हैं और लोगों ने ये अफ़वाह फैला रखी है कि उसको जिन लगा हुआ है। जिन लगता है तो उसके मुँह से झाग निकलता है, उसके हाथ-पाँव मुड़ जाते हैं। अ, और इंसान को कानों का कच्चा नहीं होना चाहिए कि कोई कुछ भी कहे वो आँखें बंद करके उस बात पर यकीन कर ले। अल्लाह ने हमें अक्ल क्यों दी है कि हम सोचें, समझें, क्या सही है, क्या गलत है, इस बात को जाने। जैसे वो होता है ना कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया, हम डर गए। ये ऐसे थोड़ी होता है, अक्ल लगाओ, अल्लाह सब कुछ करने वाला है। एक बिल्ली के रास्ता काटने से क्या हो जाता है? मगर हम अपना दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। और हाँ, इंसान के अंदर इतना ज़र्फ होना चाहिए कि वो बड़ी से बड़ी गलतियों पे लोगों को माफ़ कर दे। बुरा तो लगता है जब कोई बुरा करता है, मगर माफ़ करके मामला अल्लाह पर छोड़ देना चाहिए। हाँ, हम गुनहगार इंसान, हम माफ़ नहीं करते, हम तो दिल में लेके बैठे रहते हैं। कोशिश करनी चाहिए कि हम माफ़ कर दें।
اللہ کو بہت پسند ہے یہ خاصیت نا، جس بھی انسان میں ہو۔ اگر ہم دوسروں کو معاف کریں گے تب اللہ بھی ہمیں ہماری غلطیوں کے لیے معاف کرے گا۔ چلے، پھر یہ اچھا ناول تھا، مگر لڑکیوں کو اتنا بھی سیدھا نہیں دکھانا چاہیے نا کہ وہ بس منہ بند کر کے بیٹھی رہے۔ صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ بزدلی ہوتی ہے، صبر کچھ اور ہوتا ہے، اس کو صبر نہیں کہتے ہیں۔